Good evening, friends. Myself, CA Raj Aggarwal. Welcome you all today webinar on taxation of joint development agreement. And today we are very honored to have with us our guest speaker for today webinar, CA, CS, CMA, Dr. Raj Aggarwal ji. Welcome, CA Raj Aggarwal ji. I also welcome our session chairman, ex-ITT member, Advocate IP Bansal ji. Bansal ji, welcome, sir. I also welcome Advocate Rakesh Kumar, our guest of honor of this webinar, very senior advocate. Welcome, sir. Thank you, sir. I also welcome our moderator, my friend, my guru, tax guru, CS Sunil Garji. Welcome, sir. So, friends, today we will discuss applicability of Section 45 5A. Number two, how to determine year of transfer of asset. Number three, how to determine value of sales consideration when received in kind. Next, when can land be treated as business asset for land owners? And last, whether advance received against transfer of land taxable in the year of receipt. So, our guest speaker are with us. So now I request CA Sunil Garg, our moderator of this webathon, to please say about this webinar today. Thank you, Raji. First of all, I welcome Shri IP Bansal ji, the senior most member of our team, our guide, our mentor. And friends, as you know, we started this webathon 1 series on 16th June 21, and that was the decoding of income tax law. 40 webinars were done in that whole series up to 16th October 2021. And then we requested a lot of requests from our members that we should have special session on some special topics, and that's why it's webathon 2.0 and now it's day 6. I also welcome Dr. Raj Aggarwal, who is really my guru, and it's my privilege always to have a few words before him. और फ्रेंड्स, मैंने जो कुछ भी टैक्स में थोड़ा बहुत सीखा वो राज जी ने ही सिखाया मेरे को, और कितनी आसानी से सिखाया मैं ये कह सकता हूँ कि हम मॉर्निंग वॉक साथ करता हूँ मैं राज जी के, इट्स माई ऑनर, माई प्लेजर। और मॉर्निंग वॉक में हम डिस्कस करते थे, मैं राज जी से कुछ पूछता था, राज जी मुझे कोई गुड़ सूत्र देते थे, पर मैं समझता था कि राज जी ने मुझे सीधी बात तो बताई नहीं, पर ही वॉज मोटिवेटिंग मी टू रीड द थिंग्स कि भी आप पढ़िए। तो राज जी आपको जो बोलेंगे तो एक भी शब्द मिस नहीं करना है आपको, वो सरल भाषा में नहीं समझाते, बड़े गुड़ भाषा में समझाते हैं, और ये उनकी खासियत भी है। थैंक यू राज जी for accepting my invitation to be the guest speaker on this very tedious subject of joint development agreement. I also welcome our friend Advocate Rakesh Kumar, a learned advocate, as a guest of honor today. Now friends, today webinar and today topic is very very complicated subject, और शायद अभी तक सरकार को भी नहीं पता चला कि हमें करना क्या है। देखिए 45(1) में लिखा हुआ है, any profit or gains arising from the transfer of a capital asset affected during the previous year, save otherwise as section 54 to 54 GB, and it shall be taxed in the year of the transfer as capital gain. और 45(5)(a) में स्पेशल सेशन लाया गया जब लिखा गया नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 45(1), और अगर आप कोई जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट या कोई स्पेसिफाइड एग्रीमेंट से इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, पहला राइडर तो है कि इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ये सेक्शन है 45(5)(a), और आप अगर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते हैं और स्पेसिफाइड एग्रीमेंट से करते हैं तो इट विल बी ट्रांसफर। ट्रांसफर की डेफिनेशन को चेंज नहीं किया, ट्रांसफर को डेफर नहीं किया, टैक्सेबिलिटी को डेफर किया। और इशू क्या आता था? हमेशा इशू आता था कि जब 45(1) में जब हम जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट करते थे, आपने एक प्लॉट है, आपने पोजीशन दे दिया, बिल्डर ने उस पर मकान बनाना शुरू कर दिया। मान लीजिए एक प्लॉट है, उस पर 4 फ्लोर बनने हैं, 3 आपको आने हैं, एक बिल्डर के पास में जाना है। तो 45(1) में इशू रहता था कि ट्रांसफर कब हुआ, पोजीशन हमने दे दिया तो 2 क्लॉज 47 में जो ट्रांसफर है पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वो लागू हो जाएगा। डिपार्टमेंट कहता था नहीं जी आपने तो पोजीशन दे दिया, आपको पेमेंट आई हो ना आई हो, बाद में एग्रीमेंट, बाद में कंस्ट्रक्शन हो ना हो, कंसिडरेशन आए ना आए, आप हमें तो टैक्स दे जाओ। और हमेशा वैल्यूएशन का इशू भी रहता था।
सरकार ने उसको ओवरकम करने के लिए 45(5)A लेके आए। उसमें कहा कि आप जब ट्रांसफर करेंगे अंडर अ स्पेसिफाइड एग्रीमेंट, तो हम टैक्सेबिलिटी को डेफर कर रहे हैं 45(5)A में टिल द ईयर ऑफ द कंप्लीशन। अब सवाल इसमें बहुत सारे पैदा हो गए और ज्यादा। क्या कहा उसने, जब हम पहले 45(1) में करते थे इस काम को, तो हम कहते थे जी हमने ट्रांसफर किया 1/4 ऑफ द लैंड और हमें मिला क्या, सुपर स्ट्रक्चर। तो 1/4 को हमने लैंड मान लिया, उसकी हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया, और जो आया उसको हम कंसिडरेशन मान लिया करते थे। लेकिन 45(5)A में बड़ी गहरी बात कही है। उसमें कहा है कि जो टोटल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, मान लीजिए आपको 3 फ्लैट मिल रहे हैं, तो तीनों फ्लैट की जो टोटल स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो तो आपका कंसिडरेशन माना जाएगा, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर। और जो आपकी लैंड की कॉस्ट थी पूरा का पूरा, ये मान लीजिए कि आपने पूरा लैंड ट्रांसफर किया और आपको उसके बदले में 3 मिल गए। और स्पेशली जब मेट्रो सिटीज में जहां पर इस तरह से बिल्डर बायर एग्रीमेंट हो रहे हैं, वहां पर बहुत बड़ा इशू पैदा हो गया, पहली बात। दूसरी बात 45(5) को 40, दूसरी बात है 54 की डिडक्शन को लेके, कि क्या जिस साल में ट्रांसफर तो आपने मान लीजिए एग्रीमेंट 2019 में हुआ है और कंप्लीशन 2023 में हुआ है, तो क्या 54 मिलेगा? ऑफ कोर्स देयर इज ए लीगेसी फ्रॉम 45(2), जहां पे कहा था कि डेट ऑफ ट्रांसफर पे भी आपको मिल जाएगा 54(F). तो एक इशू है बहुत बड़ा है। और दूसरा जो मुझे लगता है राजी, वो है बलबीर सिंह मैनी के बाद में हमने जर्नी स्टार्ट की थी चतुर्भुज दास कपाड़िया से बॉम्बे हाई कोर्ट, और अब खत्म कर रहे हैं बलबीर सिंह मैनी के ऊपर। क्या बलबीर सिंह मैनी के डिसीजन के बाद में क्या हम 45(1) में चले गए कि नहीं चले गए दोबारा? भाई अगर आपने स्पेसिफाइड एग्रीमेंट नहीं किया और उन्होंने उसमें कहा कि भाई अगर आपका ट्रांसफर नहीं हुआ, आपकी कन्वेंस डेट नहीं हुई, तो इट इज नॉट ए ट्रांसफर। तो पार्ट परफॉर्मेंस के बेस पर ट्रांसफर नहीं मान सकते। तो उसकी क्या निटिग्रिटीज है। और दूसरा सवाल उठता है कि अगर मान लीजिए वो लैंड, वो जो लैंड है वो एज ए स्टॉक इन ट्रेड है, तो क्या इश्यूज होंगे? तो सो मेनी कंबरसम इश्यूज, और आई थिंक ही इज द बेस्ट पर्सन to give a deliberation on this typical subject. Now I request Mavia ji to invite our session chairman. Thank you, Sunil sir. Now we are very honored to have Advocate I.P. Bansal ji as our session chairman. Advocate I.P. Bansal ji is a former judicial member of Income Tax Appellate Tribunal. He is a master's in law. He is a fellow member of Supreme Court Bar Association, and he is a fellow member of Delhi High Court Bar Association. He is also a practicing chartered accountant in 1976. Now he is practicing in High Court and Supreme Court. So we are very honored to have you, sir, and request you to say a few words on this topic. So your mic is mute. Good evening, Raj Aggarwal ji, Shri Sunil Garg ji, Raj Aggarwal ji, Rakesh Kumar ji. I am thankful and grateful for inviting me to this knowledgeable webinar of dealing with subsection 5A of section 45, which has been brought by Finance Act 2017 with effect from 1/4/2018 and is applicable from assessment year 2018-19. So earlier, as was told by Shri Sunil Garg ji, there were so much complications in deciding that in which year it will be taxable when joint development agreement is entered into by a landowner or a building owner with some developer to give major part of the share of that developed property to the owner and keeping some part on account of expenses and all these things. So जब ये होता था तो डिपार्टमेंट क्या करता था, शुरू से ही उसको जिस दिन एग्रीमेंट हो गया उसी दिन से टैक्स लगाने की कोशिश करता था। तो एक सर्टेनिटी गवर्नमेंट लाने के लिए इसको फाइनेंस एक्ट 2017 में 1/4/18 से उन्होंने ये प्रोविजन बनाया, जब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलेगा तब वो ईयर ऑफ टैक्सेबिलिटी बनेगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन पार्टली भी मिल सकता है, फुल्ली भी मिल सकता है आपको। तो अगर उन्होंने इसको भी एम्बिग्यूटी को दूर करते हुए कहा, चाहे वो पार्ट में है चाहे वो फुल में है। अब जब एग्रीमेंट के साथ कोई तो बिल्डिंग ले लेता था, कोई कैश ले लेता था साथ में, तो उन्होंने उस एम्बिग्यूटी को भी दूर करते हुए कैश वाला पार्ट भी उसमें शामिल कर दिया। तो एक सर्टेनिटी लाने का प्रयास किया गया।
जब भी कोई लेजिस्लेशन में आता है तो सर्टेनिटी लाती है गवर्नमेंट। किस लिए लाती है? इसलिए लाती है एक तो इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन का पता लग जाए, सर्टेनिटी आ जाए, लोगों में लिटिगेशन कम हो जाए, इस चीज को। पर होता उसके उल्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड रह जाते हैं। अब आप देखिए, सर ने बात की, सुनील गर्ग जी ने बलवीर सिंह मैनी के केस की। अब हमारी गवर्नमेंट ने पहले ही ये कॉन्सेप्ट ले आए फाइनेंस एक्ट 2017 में, और डेट ऑफ डिसीजन ऑफ बलवीर सिंह मैनी इज 4 अक्टूबर 2017. So in February 2017, government has brought this legislation prior to that judgment. Now what is the impact of that Balbir Singh Mani decision? So they have find out that first there was a legislation brought on the statute, registration and other related laws, Amendment Act 2001. And simultaneous amendment was made in section 53 of the Transfer of Property Act also. And then another amendment was made in section 17 and 49 of the Indian Registration Act. So all these combined effect of this was that unless your agreement is a registered one, it is of no consequence for the purpose of transfer to be considered under section 247(5). So they have annulled the law is standing till date. There is no change in that law. If your agreement is not registered, then it cannot be considered as a transfer according to the decision of the Supreme Court. Now they have brought the term, legislator has, because there is no authoritative pronouncement till now, specified agreement, they have defined it under subsection 5A of section 45. So now we have to arrive at so many interpretations about this, what is the specified agreement, and they have tried to cover all the possibilities which may arise, because they have part of the land and building or land only, or including cash, all is consideration. So all these deliberacies, and then there is one more aspect. I am deviating from the main subject as the question arises, that one more point of law is settled by the Supreme Court in Balbir Singh Mani. There cannot be no income on hypothetical basis. If for some reason, for some agreement with joint development agreement subject to approval or something like that, it fell through, then there will be no income tax on that. It has been clearly held in the Balbir Singh Mani case. So all these things, intricacies have to be seen. And today we have the benefit of having Dr. Raj Aggarwal ji, who will deliberate all these issues. So I now hand over the mic to Malvia. Thank you very much. Thank you, IP Bansal ji. Now we are very honored to have Advocate Rakesh Kumar ji as a guest of honor of today's webinar. Rakesh Kumar ji is practicing for last 30 years in direct tax and indirect taxes. He is looking after matters from assessment to appellate status as CIT Appeals Tribunal, Delhi High Court. He is a member of Delhi High Court Bar Association, Delhi Tax Bar Association, Silsix Bar Association, New Delhi and East Delhi Advocate Forum, New Delhi. He has delivered lectures and been panelist at webinars on income tax provisions, VAT and sales, and GST. He has been an active member of Silsix Bar Association and has been elected as an executive member of Bar Association 3 times. I welcome you, sir, and request you to say a few words on the topic. So your mic is mute. Thank you so much. I'm grateful to Dr. Raj Aggarwal ji and Sunil Garg ji for giving me opportunity to join this platform. And I don't have any words to be here and sharing the platform with Dr. Raj Aggarwal and IP Bansal ji. They both are legal luminaries, and Dr. Raj Aggarwal is well-renowned speaker on various direct taxes as well as audit, and they have he along with Dr. Rakesh Gupta have authored various books and commentaries, and we have been listening to them for last more than 25 years. Now today in this Webthon 2 series, Dr. Raj Aggarwal shall be deliberating on taxation of joint development agreements.
So in brief, I have got certain doubts and clarifications in my mind. So I would like to share those with Rajji, so that during his deliberation, if he can cover those, it will be great. Normally, we people who are into practice, for them, it is a very tedious subject. So, but for other laymen also, it is more complex, though they don't understand the intricacies of it. What is exactly a joint development agreement? When we talk of JDA, a question comes that it may be something between a big housing societies and big land aggregators. But when we see that in our every lane in the colonies also, we find the same thing happening, but that is in unregistered shape. A house owner gives his property to a developer to demolish it and construct 4 floors. So under this, when he gets back the completed floors, what will be the treatment of those floors in his hands? So that has to be deliberated today. Tax issues in the hands of landowners under JDA, tax issues in the hands of developers under JDA, whether it is a capital receipt or not, then whether this arrangement will be known as a AOP or joint venture, that has to be looked into. And then finally, the sale deed which will be executed under JDA, whether it will be executed by landowner or by the developer, and what will be the tax implications on that. Then similarly, when the property is transferred between landowner and the developer, on the signing of the agreement only on the very first day or after completion of the property. Then what will happen in case of any dispute or termination of JDA in the hands of landowners as well as in the hands of developers? Then whether these agreements should be registered at all or not, especially in case of smaller single unit flats landowners. Then taxation part, when coming to that, besides GST and all, direct taxes, will like to have your views on applicability of section 2 subsection 47, 45 subsection 2, 45(1), 45(5), and similarly exemptions under section 54 and 54F in the hands of landowners, and then certainly the deeming provisions of 45(2), 50C, 50D, and section 56, and thereafter accounting method, whether it should be on PCM basis or CCM basis. So we would like you to kindly answer all these during your deliberation. Over to Malia ji. Thank you. Thank you, Rakesh ji. I request all the viewers, if you have any queries or any questions, so you can write it down in the comment box, and in the end, our speaker will answer your query. Now, we are very honored to have Dr. Raj Aggarwal ji as a guest speaker of today's webinar. Dr. Raj Aggarwal ji is a practicing senior partner in Messrs. Rakesh Raj and Associate Chartered Accountants since 1985, having 33 years of professional experience, having office at Faridabad, Gurgaon, and Delhi. Raj Aggarwal ji is a FCA, FCS, AIWCA, LLB, LLM, PhD, MCom, and MBA. His areas of specialization in professional practices are income tax survey, search, and seizure cases, tax planning, strategic business planning for corporates. Also, he has presented various articles and presentation. He has authored various articles on professional topics published in professional magazines like CA Journal and government official websites. He has made presentations at various seminars organized by the Institute, trade commerce, trade chambers on taxation, tax audit, accounting standards, strategic planning, and economic analysis, etc. He, as a visiting faculty at various institutes of management, including National Institute of Financial Management, Faridabad Management Development Institute, Gurgaon, National Academy of Direct Taxes, Nagpur, and Faridabad Industries Association. He has appearing at various news channels for discussions, analysis on union budget and professional topics. He has authorship Income Tax Search and Seizures published by Taxman 2011. Also, he has published Taxation of Real Estate Developers and Joint Development Arrangements published by Taxman in January 2016. I welcome you, sir, and request you to start your deliberations. Thank you, Mavia. Honorable Bansalji, my very dear friends Rakeshji and Sunilji. Today, the issue of discussion regarding joint development arrangements
complicated tax issues which are involved in it, we will have, a long deliberation. As Rakesh ji has pointed out, so many facets. I don't know how much within the time limit it would be possible to cover, but I will try my best to cover as much as possible. First of all, what is joint development agreement? As Rakesh ji has pointed out, that in fact joint development arrangement is in the nature when there is land available with the landowner, but he does not have the skill to develop the land. On the other hand, there is a developer who does not have the resources sufficient enough to buy the land outrightly and develop the develop the project on it. So therefore, a collaboration is made, that land is contributed by the landowner and development is made by the developer. Developer spends the cost of development from his side. So therefore, the superstructure is being developed by him and land is owned by the landowner. And the consideration is paid in different ways. So consideration may be paid in lump sum, in installments. The amount is decided in lump sum rupees, and installments are paid along with the proceeds of sale consideration received by the developer after development, because he does not have the resources right in the beginning. That's why this kind of arrangement. So therefore, there can be one way when some fixed amount is there, but payment is made in installments along with the sale of the developed real estate. Or there can be arrangement when certain percentage of the developed real estate is given to the landowner. Or there can be arrangement when certain percentage of the developed real estate in consideration of the land is given to the landowner. So there can be different ways. So the structuring of joint development agreements is made in a very complex manner, depending upon the resources available with the landowner and the developer, and the kind of trust and kind of faith they have on each other. Because landowner wants that all the rights of the land should remain with him till he gets the payment, till he gets the consideration of sale. But on the same time, developer wants that the all rights of the land ownership should be transferred to him right in the beginning, so that after the development has taken place, at no stage landowner can back out or can break the deal. So therefore, there remains a tussle in deciding the terms of the joint development. So both try to protect their interest, and in that process, the structuring of the terms and conditions of the transaction becomes very complex. But now, out of this complexity, the tax issues emerges, and tax issues are also again very complex. So generally, in a plain transaction of sale of land, capital gains is attracted at the time when there is a transfer of land, the year in which transfer takes place, irrespective of the consideration being received. Generally ये होता है कि consideration is received within few months, so therefore there is no problem. But if consideration is being received after 3 years, 4 years, 5 years, 6 years in installments, then complication may arise. So generally we have to decide two things. In the case of taxability of capital gains on transaction of sale of land, that what is the year of transfer in which capital gains is going to be taxed, and what is the value of the sale consideration. So year of transfer, there were so many complicated issues which emerged out of these structuring of the joint development agreements, that possession is handed over to the developer for making the development, for carrying out the development. Whether the at the time of handing over the possession, whether it can be said that the ownership of the land has been transferred and capital gains will be attracted at that point of time. Next stage can be that you have given the right of sale also to the developer along with the development rights. So along with the development rights, if right of sale has also been given,
then power of attorney may be executed. If sale deed is being executed, then matter overs, because legal title is also transferred, and under section 247 also there is a transfer. But only power of attorney is handed over, then whether this can be said the event when we can say that there is a transfer of land which has taken place. Again, there can be so many issues, because as per section Transfer of Property Act section 53A, we have to examine, because that has been borrowed in the definition of section 247 for the purpose of transfer under the Income Tax Act. So irrespective of sale deed being executed, even if the transaction is falling within the ambit of Transfer of Property Act section 53A, then also taxable event will occur, it will arise. Then there can be partial transfer of land, that if consideration is being received in kind, then only that part on which development that part of land which is going to the developer's share, only that land is being transferred. The other part which remains with the landowner, for example 40%, 60%, like 60% will be retained by the developer, 40% will be given to the landowner, the developed real estate. It means the landowner has transferred only 60% undivided portion of the land to the developer, 40% he has not transferred. So the taxability should be only with respect to 60% of the land, for which consideration can be the cost incurred by the developer in developing the 40% of the land or the developed real estate which is to the share of the landowner. So I mean, these kind of various complicated issues arose, and there were controversial decisions also up to Supreme Court. जो भी कपाड़िया, द्वारकादास कपाड़िया का है, we will discuss it then again other decisions. So to resolve this problem, these complications, section 45(5)(a) deeming provision was introduced by the legislation, that in case of joint development agreement, we will they said that what will be the year of transfer and how the value of sale consideration will be determined if the consideration is being received in kind. So they prescribed that. So when they prescribed, first of all, it was addressing the problem only partially, because only it is applicable only when landowner is individual or HUF. So if landowner is other than individual or HUF, the other earlier complications, earlier issues, controversies which were there, those still remain. So we will have to discuss now it in two parts. One is when 45(5)(a) is being attracted, and secondly when it is not being attracted. And secondly, when 45(5)(a) was introduced, so they resolved so far as these two problems were concerned, that what would be the year of taxability and what would be the value of sale consideration. But along with this, as Rakesh ji and Sunil ji pointed out, other new issues emerged, which were out of the provision which was drafted in such a manner. So we will discuss now what are the new issues which are emerging, though resolving these two issues, but new issues are coming up. So let us go one by one. So first of all, Mavia, would you load my presentation, or should I go without presentation? No, sir, I'll share your presentation. Yes. अभी राकेश जी ने एक बात और पूछी थी कि whether this can be said to be in the nature of AOP or joint venture. Probably AOP and joint venture has got different characteristics. So far as this aspect of collaboration is concerned, here both are having different ownership. So whether by this kind of collaboration a new entity is emerging in the nature of AOP and or in the nature of joint venture, which can be taxed separately, independently, I think not. It is not there, because here one is contributing land, but ownership remains, or if it is transferred, then he is the taxable entity, and whatever the developer is developing, when the ownership of that development is transferred, that is a separate entity. So we cannot say that a single entity or a different entity is being created by collaboration agreement.
Another thing, okay, now, Mamiya, would you please, ये मेरे यहाँ से हो जाएगा या आपको करना पड़ेगा? Yes. So far as the tax issues are concerned, one is for the landowners and secondly for the developers. There can be different tax issues. So first of all, let us examine the tax issues for landowners. Yes, Mavia. Mavia? Yes. Okay, thanks. So when we see any kind of joint development agreement, probably these are certain steps which we have to examine first of all. At step 1, we have to see that whether the land in the hands of landowner is a capital asset or stock in trade. If it is capital asset, then the taxability will come under section 45 as capital gains. But if the asset is in the nature of stock in trade as a business asset, then the taxability would be as a business income under section 37 to 44. So first of all, we have to examine that whether the land in the hands of landowner is a capital asset or stock in trade. Generally, for individual and HUF, it is remains like capital asset. But in the case of business entities, when any company is holding a land and making a collaboration, then it may be in the nature of stock in trade. So the taxability would be entirely different depending upon the nature of the asset in the hands of the landowner. What may be the basis or criteria, or what are these legal jurisprudence to determine whether a land or a asset is a capital asset in the hands of the owner or stock in trade? This altogether is a different chapter. So we will discuss it at a later part. But prior to that, let us see the another aspect, that there may be situation when capital asset is converted into stock in trade. Then section 45(2) comes into play. Their taxability up to the date of conversion, it remains capital gains, and after the date of conversion, it becomes business income. So 45(2), according to the provision of 45(2), we have to look into the taxability. But second step is important, that if the asset is in the nature of capital asset, so we have to determine two things, that what is the date or year of transfer of the asset, because capital asset, capital gains is taxable in the year of transfer, irrespective of the receipt of the consideration in any of the years, or whether consideration received or not. If the ownership has been transferred, then taxability arises. And secondly, what would be the value of sale consideration, particularly when sale consideration is linked with the percentage of revenue to be derived by the developer, or as a certain developed real estate to be received in kind. In two situations, the value of sale consideration to be determined, which is to be received and to be determined in future. Because as on today, if transfer has taken place, but consideration will be received in future, and amount you do not know, that what would be the value of the sale consideration, then how the taxability will be determined? Again, this becomes an issue. So these two things are required. And after the introduction of 45(5)(a), now we have to examine this also, whether the transaction falls for the landowner within the ambit of 45(5)(a), because 45(5)(a) is a deeming provision. So first of all, if it is falling within the ambit of 45(5)(a), then it will be the taxability will be as per 45(5)(a). And if it is not falling within the ambit of 45(5)(a), in two situations as I discussed earlier, then we will have to determine the year of transfer and value of sale consideration for taxability under section 45(1). Then it will go to the main section under section 45(1). As per the general provision of attraction of capital gains, taxability will arise. Third step, we have to see that whether capital asset is rural agricultural land. If it is rural agricultural land, then it is not taxable at all. So transfer, if at the time of transfer of land by the landowner to the developer, its character is rural agricultural land, then it is out of the ambit of section definition of asset for the purpose of attraction of capital gains. So then, therefore, we have to look into that also. And another aspect may be what is the holding period in the hand of the landowner.
if as per the holding period of the land, whether it is a long term or it is a short term. If it is a long term, then whether the deductions under section 54, 54F or other sections may be available or not. If it is a short term, then taxability or tax rates would be different. If it is a long term, then it would be different. So these are different aspects which we have to examine. Next slide, please. So first of all, let me deal directly with 45(5)(a), because this is the most discussed section nowadays so far as JDA is concerned. Because generally जितने भी ये ट्रांजेक्शंस होते हैं, इसमें लैंड ओनर इंडिविजुअल्स काफी होते हैं. इंडिविजुअल्स अगर होते हैं तो 45(5)(a) अट्रैक्ट होने के चांसेस पूरे हो जाते हैं. तो उसमें भी जो राकेश जी ने बोला था अभी कि वो जो इस तरह के ट्रांजेक्शंस हैं, जहां एक हम अपनी हर कॉलोनी में देखते हैं कि आजकल ये डेवलपमेंट बहुत चल रहा है कि एक प्लॉट है 500 गज का या पुराना घर है, उसको किसी बिल्डर को दे दिया, डेवलपर को दे दिया, उसने उसको तोड़ के 4 फ्लोर बना लिए. 1 floor will be retained by him, 3 floors will be given to the landowner. Then at what point of time taxability will arise? So this is the most popular and most asked transaction regarding the taxability, whether 45(5)(a) would be attracted in such cases or not. So first of all, let us see that section 45(5)(a) is a deeming provision. It overrides the provision of section 45(1) to the extent that the year of transfer is not relevant so far as the attraction of deeming provision of 45(5)(a) is concerned. The taxability under this section has been stated to be in the year in which completion certificate is issued to the developer of the real estate. So if you have made a collaboration and the project is completed, completion certificate is obtained or is issued by the regulatory authority with respect to that project, in that year the taxability will arise, irrespective of the year of the actual transfer of the land to the developer. This is one aspect that where deeming fiction has been created. And second deeming fiction has been created regarding the value of sale consideration. And now sale consideration can be a lump sum amount in cash, say around say in some transaction it is stated that 50 lakhs will be given and 40% of the developed land will be given. So 50 lakhs plus 40% of the developed real estate. 40% maybe if there are 5 floors, 2 floors are given to the landowner. That is 40% of the real estate. Now 50 lakhs is the amount which is there. So determination of 50 lakhs is no problem. But what would be the value of the 40% of the developed real estate? That here it has been provided that the stamp duty value as on the date of transfer, and date of transfer is as on the year in which completion certificate has been issued. So the stamp duty value of the developed real estate shall be taken to be the value of the consideration. तो इस इश्यू को भी एड्रेस कर दिया उन्होंने. लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है विच आई विल लाइक टू जस्ट ड्रॉ अटेंशन ऑफ ऑल ऑफ यू कि 45(5)(a) के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है that there should be transfer of land by landowner to the developer. Year of transfer is not important, it is not relevant, but transfer should be there. If there is no transfer being made by landowner to the developer, then 45(5)(a) is not attracted. This is very important to note. In the kind of transactions which we are discussing, that एक प्लॉट का लैंड 500 गज का लिया और डेवलपर के साथ एग्रीमेंट कर लिया. If you have entered into the collaboration agreement and only a license has been given to develop the real estate, but there is no intention of transferring the land to the developer by the landowner, then these kind of transactions do not fall within the ambit of 45(5)(a). Because the 45(5)(a) what we are examining and what the deeming fiction has been created, when there is a transfer of land by landowner to the developer,
capital gains arises. तो उस केस में ईयर ऑफ ट्रांसफर एंड वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को उन्होंने डिमिंग फिक्शन क्रिएट करके डिटरमाइन कर दिया. बट द फर्स्ट कंडीशन दैट देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ लैंड अनलेस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ लैंड. अब इस तरह के जो ट्रांजेक्शंस होते हैं जहां प्लॉट ऑफ लैंड होता है, उसके ऊपर डेवलपर को आपने डेवलपमेंट करने के लिए दे दिया, वहां इंटेंशन इज नेवर बाय द लैंड ओनर टू ट्रांसफर लैंड और अनडिवाइडेड लैंड आफ्टर डेवलपमेंट टू द डेवलपर. जहां लैंड का अगर ट्रांसफर की इंटेंशन नहीं है, या जो टर्म्स ऑफ जेडीए हैं उसमें कहीं ये नहीं है कि लैंड की ओनरशिप ट्रांसफर होगी डेवलपर को, देन 45(5)(a) नहीं लगेगा. उस केस में जो भी डेवलप्ड रियल एस्टेट आप ट्रांसफर करेंगे टू द डेवलपर और टू द नॉमिनी ऑफ द डेवलपर, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर इट विल बी टैक्स्ड, क्योंकि पोजेशन हैज बीन गिवन टू द डेवलपर only for the purpose of development. So only development rights have been given. So it is a license to make the development. Possession can be of different nature. केवल possession देने को loosely हम कहें कि possession दे दिया, ownership हो गई, transfer हो गई. No. Possession can be of different nature. We have to examine whether the possession has been given which is akin to transfer of ownership of land. There is intention of transfer of land. इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं जहां एक फ्लोर पे 4 फ्लोर बना के और 3 और 1 या 2 कर लेते हैं, उनमें देयर इज नेवर इंटेंशन ऑफ ट्रांसफरिंग द लैंड टू द लैंड ओनर बाय द लैंड ओनर टू द डेवलपर. और if at all there is a transfer of land, it is only to the extent of the undivided portion of land which is going in to the share of the developer. अगर डेवलपर को 4 फ्लोर में से 3 लैंड ओनर के पास है, 1 उसके पास है, तो 25% ही लैंड ट्रांसफर हुई है, 75% स्टिल ओन्ड बाय द ओनर. लेकिन जब ये 45 ड्राफ्ट हुआ है, उस समय इस चीज को नजरअंदाज कर दिया गया है. लेजिस्लेशन हैज नॉट एनविसेज्ड दैट दिस काइंड ऑफ सिचुएशन मे इमर्ज. व्हेन दे हैव सेड दैट द सेल कंसिडरेशन वुड बी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द डेवलप्ड रियल एस्टेट, तो वहां जो डेवलप्ड रियल एस्टेट है दैट इज लैंड एज वेल एज सुपर स्ट्रक्चर, दोनों की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेने की इंटेंशन हो गई है, जो नजर आता है इसकी ड्राफ्टिंग से, which should not be there, because if 75% of land is not being transferred, then what you have transferred only 25% of land, for which 75% superstructure on the land which remains in the share of the landowner is being received by the landowner. So therefore क्या हुआ कि 25% लैंड गई और 75% का जो सुपरस्ट्रक्चर की वैल्यू है वो उसका सेल कंसिडरेशन हुआ. So now a challenge will come that how to determine the stamp duty value of the superstructure only, because we cannot determine the stamp duty value of the entire land, because entire land की करेंगे तो पूरी land transfer होनी चाहिए, and the entire land is not being transferred. वरना उस केस में क्या होगा कि पहले तो ये दिखाओ कि लैंड, आप ये मानो कि लैंड ट्रांसफर हो गई, जो लैंड आपके पास है जो ट्रांसफर ही नहीं हुई, जिसके ऊपर आपने को बिल्डिंग बना के मिल गई, उसको हम ट्रांसफर कैसे मान के उसके ऊपर भी कैपिटल गेन्स टैक्स पे कर दें? That is never the intention, nor the transaction is not like that. Neither the legislation would require that you should pay the tax on the land which is not being transferred by you. That to presume that first entire land has been transferred, then उसके बाद आपने डेवलप्ड 75% डेवलप्ड रियल एस्टेट वापस लिया, तो उसके लिए फिर दोबारा से वो रजिस्ट्री आपके नाम से करेगा डेवलपर. इफ ओनरशिप हैज गॉन टू द डेवलपर, इट मींस कि वापस ओनरशिप आपको मिलने के लिए उसको सेल डीड करनी पड़ेगी 75% की, उसके ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी अलग से पे करेंगे, बिकॉज वंस ओनरशिप हैज गॉन देन यू आर रिक्वायर्ड टू टेक बैक द ओनरशिप. सो इट इज नेवर द इंटेंशन. और ड्राफ्टिंग ना ऐसे होती है, नोबडी वुड लाइक कि इस तरह से ड्राफ्टिंग हो कि आप पहले लैंड को पूरी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दें और वापस फिर 75% डेवलप्ड रियल एस्टेट लैंड एंड सुपरस्ट्रक्चर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ दोबारा से रजिस्ट्री अपने नाम से कराएं. नो, इट कैन नॉट. ओनरशिप रिमेन्स विद यू, ओनली सुपरस्ट्रक्चर इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय द डेवलपर. सो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसिडरेशन निकालने के लिए केवल सुपरस्ट्रक्चर की निकालनी होगी, नॉट ऑफ द एंटायर
और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अवेलेबल होती है वो सुपर स्ट्रक्चर की होती नहीं है, या तो फ्लैट की होती है विच कंसिस्ट ऑफ लैंड एंड सुपर स्ट्रक्चर, और या केवल लैंड की होती है। जो भी अथॉरिटीज प्रेस्क्राइब करती है दो ही चीजें प्रेस्क्राइब करती हैं। तो वी विल डिस्कस इन लेटर पार्ट हाउ दिस puzzle is to be resolved. So the important thing which I was just discussing, that there should be transfer of land. अभी हमें ये डिटरमाइन करना है कि ट्रांसफर पूरी लैंड हुई है या बिल्कुल लैंड नहीं हुई है या पार्शियल लैंड हुई है। अकॉर्डिंगली जितनी लैंड ट्रांसफर हुई है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी, वो हमारी कॉस्ट होगी, और उसकी ही सेल कंसिडरेशन की वैल्यू निकाली जाएगी, और उसी को हम डिफरेंस को टैक्स करेंगे। और ईयर ऑफ चार्ज ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जिस साल में आपको इश्यू हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डीमिंग फिक्शन से आ रहा है। लेकिन इसमें एक इशू आता है कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, अब कई जो रेगुलेटरी अथॉरिटी कई स्टेट्स में क्या होता है, पहले ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देते हैं और फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट देते हैं, दो सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं। और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बाद भी कई जगह प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो वेदर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यहाँ वर्ड यूज किया है कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट पहले मिल गया और कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला या बाद में मिला और उससे पहले आपने सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी, तो क्या इसको हम कंप्लीशन सर्टिफिकेट मानेंगे या अभी टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी? अगेन कई स्टेट्स में ये चैलेंज आ रहा है। तो आई अंडरस्टैंड दैट इफ यू गेट द राइट एंड अथॉरिटी टू एग्जीक्यूट सेल डीड, then the occupation certificate is in the nature of completion certificate. Till you do not get the right, क्योंकि कोई भी रियल एस्टेट डेवलप होने के बाद जब तक अथॉरिटी से उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, सेल डीड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑफ द डेवलप्ड फ्लैट, डेवलप्ड यूनिट, डेवलप्ड रियल एस्टेट। तो इफ सेल डीड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, टिल सेल डीड कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड, उस सेल डीड एग्जीक्यूट करने का राइट जिस सर्टिफिकेट से मिल जाएगा, that will be the certificate in the nature of the completion certificate, चाहे उसका नाम किसी स्टेट में कुछ और दे रहे हैं। अगर ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ, कई जगह क्या होता है कि भाई 25 आपको इतने पीरियड के अंदर कंप्लीट करना है, तो उसके लिए तो उन्होंने कह दिया कि चलो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज रह गई हैं, वो पूरी होंगी तब कंप्लीशन सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद आपको सेल डीड करने का राइट मिलेगा। तो टिल सेल कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिसीव्ड, टैक्सेबल इवेंट विल नॉट अराइज अंडर सेक्शन 45(5). Next page please. Yes, एक चीज और उन्होंने बड़ा अच्छा यहाँ कर दिया कि जो सेल वैल्यू है, सेल कंसिडरेशन है, दैट विल बी द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द रियल एस्टेट फॉलिंग इन द शेयर ऑफ द लैंड ओनर एज ऑन द डेट ऑफ इश्यू सेल सर्टिफिकेट प्लस द कंसिडरेशन रिसीव्ड इन कैश। तो जो कंसिडरेशन इन कैश मिल रहा है वो अर्नेस्ट मनी भी हो सकता है, एडवांस पहले मिला हुआ हो वो भी हो सकता है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हो सकता है, और अभी हो सकता है कि बाद में भी कुछ पैसा मिले। तो एक तरह से उन्होंने इनडायरेक्टली से क्लैरिफाई हो गया, हालांकि उसके ऊपर पहले भी और भी जजमेंट्स हैं कि इफ एनी अमाउंट इज रिसीव्ड एज एडवांस और एज अर्नेस्ट मनी एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट or later on before the completion of the project has taken place, whether that is taxable in the year of receipt. So it is not. This will all combine together, and the value of sale consideration, it will form part of the value of sale consideration. All amounts received in pursuance to JDA, whether as earnest money or security deposit or advance money in cash, or the value of the stamp duty value of the land of the developed real estate in kind, all put together would be the value of the sale consideration, and it will be taxable in the year in which transfer has taken place. Transfer, we are talking transfer of land to the developer. Taxability हो रही है जो लैंड ओनर ने लैंड ट्रांसफर किया है, और यहाँ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किसकी लेंगे? जो डेवलप्ड रियल एस्टेट लैंड ओनर को मिलेगी डेवलपर से। तो आई मीन टैक्सेबिलिटी लैंड की हो रही है, टैक्सेबिलिटी अभी जो डेवलप्ड रियल एस्टेट है उसकी नहीं हो रही है। उसके लिए जो जिस वैल्यू पे यहाँ सेल कंसिडरेशन लिया जाएगा वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा उस डेवलप्ड रियल एस्टेट का। फॉर एग्जाम्पल आपने लैंड ट्रांसफर की, 40% आपको 2 फ्लैट मिल गए, उनकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मान लो 5 करोड़ रुपया है, 50 लाख आपको कैश में मिला तो 5.5 करोड़ रुपया हो गया।
तो 5.5 करोड़ रुपया अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा फॉर दीज 2 फ्लोर्स फॉर द लैंड ओनर। उसकी जो लैंड की ओरिजिनल कॉस्ट है वो उसने हो सकता है 1980 में खरीदा हो, 1990 में खरीदा हो, तो उसमें जो भी सेक्शन 48 49 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से जितनी प्रोपोर्शन में लैंड गई है उतनी प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट लेके उसकी इंडेक्सिंग करके वो लेस कर ली जाएगी। अब नाउ जो डेवलप्ड रियल एस्टेट है अगर इसको फर्दर लैंड ओनर बेचता है तो उस केस में जो उसकी सेल वैल्यू होगी माइनस जिसके ऊपर यहाँ टैक्स दे दिया, जो सेल कंसिडरेशन है डिसाइड हो गया, वो उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। ये सेक्शन 49(7) में अलग से प्रोविजन दिया हुआ है कि डेवलप्ड रियल एस्टेट जब आगे बेचेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो मान ली जाएगी जिसके ऊपर आपने यहाँ डीम्ड सेल कंसिडरेशन के ऊपर टैक्स पे कर दिया है। अब मान लो 5.5 करोड़ रुपए का फ्लैट आया, एक फ्लैट बाद में उसने 3 करोड़ रुपए में बेच दिया, तो 2 करोड़ 75 लाख रुपया उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुई। 3 करोड़ में बेचा तो 25 लाख रुपए कैपिटल गेन वो सेकंड स्टेज का हो जाएगा। तो पहली स्टेज पे हम जो 45(5) इज टॉकिंग ओनली ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय लैंड ओनर टू द डेवलपर, वो तो यहाँ एग्जामिन हो रहा है। और जो सेकंड स्टेज होगी कि आपको फ्लैट मिल गया, उसके बाद उस फ्लैट को आप जिसकी कॉस्ट 2.75 है और 3 करोड़ में बेचते हैं तो वो जनरल प्रोविजन जो भी है उसके हिसाब से रेगुलेट होगा, 45(1) में टैक्सेबल होगा, वो अलग से टैक्सेबल होगा। अब वहां होल्डिंग पीरियड क्या है, तो होल्डिंग पीरियड यहाँ से काउंट होगा, ये माना जाएगा इस समय आपकी कॉस्ट एक्विजिशन हुई है। अब ये अगेन दिस कैन बी ए डिबेटेबल इशू कि उसकी जो एक्विजिशन है वो जिस समय से आपकी लैंड आपके पास है उस पर सुपर स्ट्रक्चर बन के आपको मिल गया तो होल्डिंग तब से मानी जाएगी जब से लैंड चल रही है, क्योंकि ये तो इंप्रूवमेंट है केवल जो सुपर स्ट्रक्चर आपको मिला है। तो अगर आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है और सुपर स्ट्रक्चर बना के लैंड ओनर को डेवलपर ने दे दिया है, देन देयर इज अ स्ट्रांग केस टू आर्ग्यू दैट द होल्डिंग पीरियड इज सिंस द लैंड इज बीइंग हेल्ड बाय द लैंड ओनर, ये तो दिस इज ओनली इंप्रूवमेंट इन द लैंड, though the nature of asset has transferred, has converted, but there are so many judgments कि गोल्ड लेके ज्वेलरी ले ली तो उसमें गोल्ड की होल्डिंग पीरियड से ही काउंटिंग हो जाएगी। आपने अगर उस गोल्ड पे ज्वेलरी बनवा ली उसमें कुछ चार्जेस देके, लेकिन गोल्ड को बेच के और फिर ज्वेलरी खरीदी है तो डिफरेंट एसेट हो जाएगी, उसका होल्डिंग पीरियड चेंज हो जाएगा। सिमिलर पोजिशन इज हियर, अगर यहाँ आपने ये दिखा दिया कि पूरी लैंड पहले ट्रांसफर हो गई थी और वापस आपने डेवलप्ड रियल एस्टेट लिया है तो होल्डिंग पीरियड फिर जब से डेवलप्ड रियल एस्टेट आया तब से होगा। अदरवाइज वी कैन मेक आउट द केस कि जब से लैंड हमारे पास है उसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर इज ओनली इंप्रूवमेंट, तो होल्डिंग पीरियड शुरू से होगा, तो वहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बाद में मिल जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो डिडक्शंस हैं यहाँ दो बाद में आपको मिल सकती हैं, एट 2 स्टेप्स वन कैन टेक, क्योंकि आपने डेवलपर को जितनी लैंड ट्रांसफर की, यहाँ 40% लैंड डेवलपर को ट्रांसफर किया, 60% लैंड आपके पास रहती है, तो 40% जब डेवलपर को ट्रांसफर किया है तो वो भी आपकी लॉन्ग टर्म हो सकती है कि वो लैंड की होल्डिंग से लेके और टिल इट इज बीइंग ट्रांसफर टू द डेवलपर, दैट इज टू बी लुक्ड इनटू। एंड सेकेंडली जो लैंड आपके शेयर में रह गई विद सुपर स्ट्रक्चर नाउ, उसको अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाई करते हैं फिर तो कैपिटल गेन्स की कोई बात नहीं है, लेकिन आगे चल के कभी भी बेचते हैं तो उसका होल्डिंग पीरियड और उसकी जो टैक्सेबिलिटी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो उसकी आज की हो जाएगी जो भी आज की वैल्यू होगी, लेकिन होल्डिंग पीरियड उसका आज से माना जाएगा या शुरू से माना जाएगा, ये एक कंट्रोवर्शियल इशू हो सकता है, बट देयर आर आर्गुमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स। एक और प्रोविजो दिया हुआ है सेक्शन इसमें, अरे अभी अभी मावी अभी रहने दो, अभी पिछला वाले ही रहने दो। यस, एक और प्रोविजो दिया हुआ है दैट provision of section 45(5)(a) not applicable if developed real estate falling in the share of landowner is transferred on or before the date of issue of completion certificate। तो बात तो ठीक है भाई, कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे टैक्सेबिलिटी उन्होंने कहा, और उससे पहले अगर लैंड आपने डेवलप्ड रियल एस्टेट को सेल कर दिया लैंड ओनर ने, तो फिर 45(5)(a) की बात ही नहीं है। वो तो जिस समय आपने पहले से ही अगर आपने उसको सेल कर दिया तो उसी समय टैक्सेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, तो आपको फिर कंप्लीशन सर्टिफिकेट तक वेट करने की बात नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आपने केवल सेल एग्रीमेंट एंटर किया है, जो कि जनरली सारे केसेस में होता है कि आप सेल एग्रीमेंट एंटर कर लेते हैं लेकिन सेल डीड या ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, कि लैंड ओनर के पार्ट में जो शेयर आना है उसका भी सेल एग्रीमेंट पहले से चाहे लैंड ओनर खुद कर लेता है या डेवलपर के थ्रू कस्टमर को एंटर कर लेते हैं।
तो उस केस में क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? Because whether we can say that entering into the sale agreement tantamount to transfer of the developed real estate, to my mind not, because the words used are here, falling the share of landowner is transferred. Transferred means ownership is transferred. Entering into sale agreement cannot be said that the ownership has been transferred. So again, this is again a issue which can be flagged emanating out of this proviso. But to my mind, that transfer, if there is a situation when transfer ownership has been transferred by some kind of maybe सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हो, लेकिन सेल डीड के बिना भी तो इनकम टैक्स में ट्रांसफर हो जाता है. 247 में जो क्लॉज 5 है या क्लॉज 6 है, वहां तो विदाउट सेल डीड ट्रांसफर की बात है ना. तो ऐसी सिचुएशन यहाँ भी क्रिएट हो सकती है. तो अगर ट्रांसफर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होने से पहले ही हो गया है तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा. बट अगर सेल एग्रीमेंट एंटर कर लिया है लेकिन ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उस केस में इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी. लेकिन वहां क्या होगा? the transfer consideration of real developed estate to be received by the landowner may be higher than the stamp duty value. So now 45(5) say that stamp duty value of the developed real estate will be taken as sale consideration. लेकिन अगर आपने उसको ऑलरेडी बेच दिया और उसकी वैल्यू ज्यादा है तो ऑफ कोर्स आपने उसके ऊपर भी टैक्स देना है. तो दोनों को क्लब करके ही, क्योंकि अब जो ट्रांसफर की इवेंट है दोनों चीजों की एक साथ ही फॉल कर जाएगी. तो उस केस में अगर एक साथ फॉल कर रही है तो आप जिस वैल्यू पे आपने सेल एग्रीमेंट किया है उस वैल्यू को सेल कंसिडरेशन लेके आप उसके ऊपर टैक्स दे देंगे. इफ दैट वैल्यू इज हायर देन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, इफ इट इज लोअर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे आपको देना होगा. लेकिन ये दोनों इवेंट अलग अलग भी हो सकती हैं. तो 2 स्टेज में टैक्सेशन होगा. पहले स्टेज में लैंड का होगा, दूसरी स्टेज में डेवलप्ड रियल एस्टेट का होगा, जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया था. Then the next thing is that JDA should be in the nature of specified agreement. अब ये specified agreement क्या है? This is also to be examined. And then indexation up to which year and 54F या 54EC वगैरह मिलेंगे, वो किस साल में मिलेंगे? ये बड़े controversial issues है जो कि इस provision की वजह से नए issues खड़े हो रहे हैं. Let me discuss one by one all these 3 issues. First of all, specified agreement. Yes, next page, Mavia. Yes. देखो, पहली चीज तो जो अभी बंसल साहब ने भी कहा था कि इस प्रोविजन में सुप्रीम कोर्ट के बलबीर सिंह मैनी का डिसीजन आने से पहले ही उन्होंने बोल दिया कि एग्रीमेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट. अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है तो 45(5)(a) भी नहीं लगता और ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247 क्लॉज 5 और ट्रांसफर अंडर द प्रॉपर्टी एक्ट 53A वो भी नहीं लगता. वन शुड बी वेरी क्लियर. पहले इस बात पे बहुत वो रहती थी कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर नहीं है तो दोनों ही चीजें नहीं लगेंगी, क्योंकि ये तो 45(5)(a) के लिए तो सेक्शन भी प्रोवाइड कर दिया है और 53A ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के लिए बलबीर सिंह मैनी ने बोल दिया कि भाई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए तभी लैंड ट्रांसफर मानी जा सकती है. अगर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है तो लैंड ट्रांसफर नहीं हो सकती, लैंड ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी अंडर क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 247. अब ये जिस तरह के एग्रीमेंट होते हैं जो हम अभी बात कर रहे हैं, एक प्लॉट के ऊपर अपने कोलैबोरेशन कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया आपस में, तो जनरली वो रजिस्टर्ड नहीं होते. फॉर दिस रीजन ऑल्सो उनमें 45(5)(a) नहीं लगेगा, क्योंकि उस तरह के एग्रीमेंट्स में जनरली रजिस्टर्ड नहीं होते, क्योंकि रजिस्टर्ड में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लगती है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो. और जब आपस में डेवलपर के साथ करते हैं, उसने 1 साल में बना के दे देना है, तो नोबडी वांट्स कि इस समय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे की जाए. आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है, एक स्टैम्प 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर एग्रीमेंट कर लेते हैं. सो उन केसेस में 45(5)(a) अट्रैक्ट नहीं होगा. लेकिन अगर रजिस्टर्ड है फिर भी 45(5)(a) लगेगा नहीं लगेगा, उसके लिए फिर दूसरा जो एस्पेक्ट मैंने बताया कि वेदर देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ लैंड इज टेकिंग प्लेस बाय लैंड ओनर टू द डेवलपर, दिस इज टू बी एग्जामिन्ड. ईयर ऑफ ट्रांसफर इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट ट्रांसफर शुड बी देयर. Year of transfer may be sometime even after the completion of the completion certificate is issued. Even after that, it may be there may be legal ownership which may be transferred. Completion certificate हो गया, उसने अगले साल बोला कि भाई मेरा जो फ्लैट है वो आप डायरेक्ट मेरे नॉमिनी के नाम से ट्रांसफर कर दो या मेरे नाम से ट्रांसफर कर दो. हो सकता है लीगल ट्रांसफर उस समय हो रहा हो,
उससे पहले ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें इतनी प्रोटेक्टिव टर्म्स होते हैं जहां लैंड ओनर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं वहां लैंड ओनर रिसीविंग एंड पे होता है, वहां डेवलपर बड़ा कोई रिनाउंड बंदा होता है, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, तो वो चाहता है कि ओनरशिप पहले आ जाए। लेकिन इस तरह के जो ट्रांजेक्शन होते हैं छोटे वाले, उनमें लैंड ओनर की बजाय डेवलपर रिसीविंग एंड पे होता है। लैंड ओनर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, वो ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं करता। वहां इंटेंशन कभी नहीं होती कि लैंड की ट्रांसफर किया जाएगा, लैंड ट्रांसफर डेवलपर को की जाएगी। वहां तो ये है कि डेवलपमेंट हो जाएगा तो एक फ्लैट आपका हो जाएगा। तो एक फ्लैट अगर आपका हो जाएगा तो जिस समय उस फ्लैट को ट्रांसफर करते हैं तो डायरेक्ट सेल डीड लैंड ओनर करता है, क्योंकि ये डिटरमिन किससे होगा कि लैंड ट्रांसफर हुई या नहीं हुई, कि सेल डीड का राइट किसको है, बाद में सेल डीड एग्जीक्यूट करने का राइट किसको है। अगर लैंड ओनर करता है तो ट्रांसफर हुई नहीं। लेकिन अगर पावर अटॉर्नी आप डेवलपर को दे देते हैं और डेवलपर के पास ओनरशिप चली जाती है और डेवलपर खुद ट्रांसफर कर सकता है, तब हम कह सकते हैं कि उतनी प्रोपोर्शनेट लैंड ट्रांसफर हो गई उसको। लेकिन उसके लिए पावर अटॉर्नी की जो एग्जीक्यूशन है वो इंपॉर्टेंट है, फिर कि पावर अटॉर्नी टू गिव द पावर अटॉर्नी टू द डेवलपर टू एग्जीक्यूट सेल डीड in its sole discretion without any hindrance or without any involvement of the landowner or without any permission of the landowner, then we can say कि proportionate land owner ने developer को transfer किया to the extent of his share, developer's share of the developed real estate. So one is कि it has to be registered. Secondly, allows developer to develop real estate project on land, of course, and part of the sale consideration is received in kind. ये भी इस केस में एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि कुछ ना कुछ सेल कंसिडरेशन इन काइंड होना चाहिए। कैश और काइंड का कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन कितना काइंड में होना चाहिए ये नहीं है। अब कितने एग्रीमेंट्स आते हैं जहां इन काइंड नहीं होता, फिक्स अमाउंट होता है जो डेवलपर ने लैंड ओनर को देना है। लेकिन इन 45(5) में अगर फॉल करना चाहते हैं तो कुछ काइंड में होना जरूरी है, मे बी 2%, 3%, 5%, 10% of the total developed real estate, but something should be there. अब out of this दो इश्यूज और क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि जो जेडीएस होते हैं उनमें कई बार टर्म्स होती है, दो तरह की बातें होती हैं। एक तो ये होती है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द डेवलप्ड रियल एस्टेट इन काइंड, परसेंटेज ऑफ सेल रेवेन्यू इज गिवन बाय द डेवलपर टू द लैंड ओनर, कि भाई जो भी हमारी सेल होती रहेगी उसका 40% हम आपको दे देंगे। तो इनडायरेक्टली आपने इन काइंड डेवलप्ड रियल एस्टेट नहीं दिया, लेकिन डेवलप्ड रियल एस्टेट की जो सेल प्रोसीड्स की वैल्यू होगी उसका 40% दे दिया। तो वेदर 40% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेल प्रोसीड्स को हम ये कह सकते हैं कि इन काइंड लैंड ओनर की डेवलप्ड रियल एस्टेट को उसके व्याप पे डेवलपर ने सेल किया है और वो पैसा फिर उसको दिया है, तो 45 में फॉल कर सकता है। दिस कैन बी वन इश्यू। और कई बार दूसरा इस तरह से भी होता है कि डेवलपर सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ द लैंड ओनर, कि आपकी 40% लैंड है, लेकिन क्योंकि जितना भी प्रोजेक्ट डेवलप होता है, क्योंकि ये छोटे वाले केसेस में नहीं होता, बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है कि जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो उसकी जो मार्केटिंग होती है वो डेवलपर ही करता है और डेवलपर के नाम से ही बिकता है। लैंड ओनर तो बैकग्राउंड में होता है। अब ओमेक्स ने लिया, डीएलएफ ने लिया या किसी बड़े डेवलपर ने लिया, तो मार्केट जो क्रिएट होगा वो डेवलपर के नाम से क्रिएट होगा, सेल उसके नाम से होगी। अगर आर के अग्रवाल जाएंगे साहब मेरी लैंड थी तो इसमें 40% मेरा आ गया और मैं बेच रहा हूँ अब इसको, तो उसकी वैल्यू बहुत स्लैश हो जाएगी अगर डीएलएफ के नाम से बिकेगा तो वो क्या कह देते हैं कि भाई हमारे व्याप पे आप बेच देना और पैसा इसका हमको दे देना। तो देयर कैन बी टू सिचुएशंस कि 40% इन काइंड उसकी है लैंड ओनर की, लेकिन बेच डेवलपर रहा है और 40% का जो भी पैसा आता है वो उसको दे देता है। और दूसरा टर्म्स इस तरह से लिखी हुई है कि जो भी सेल प्रोसीड्स होंगी पूरे एंटायर प्रोजेक्ट की, यहाँ कोई ईयर मार्किंग नहीं होगी, ये 40% आपका है। पहली वाली सिचुएशन में 40% ईयर मार्किंग हो गई कि भाई ये वाली टावर आपकी है, 4 टावर हैं, ये 1 टावर आपकी है लैंड ओनर की, उसको बेचने से जो प्रोसीड्स आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। और दूसरा ये हो सकता है कि टोटल 4 टावर का हम सेल करेंगे, उसका जो 40% ऑफ दी सेल प्रोसीड्स होगा वो आपको कंसिडरेशन मिल जाएगा। अब इन दोनों सिचुएशन में क्या हम ये कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ द सेल कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड इन काइंड बाय द लैंड ओनर, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है,
एंड 45(5)(a) में भी अट्रैक्टेड, कैन बी अट्रैक्टेड मे बी कई बार, क्योंकि इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ द लैंड ओनर कि 45(5)(a) से टैक्सेबिलिटी हो, क्योंकि 45(5)(a) में टैक्सेबिलिटी में कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। इशू ये है कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, इसमें क्लियर है कि भाई कौन सा ईयर किस ईयर में होगा, किस वैल्यू पे होगा। अदरवाइज अगर हम 45(1) पे जाएंगे, जो कि आगे देखेंगे जो केसेस इसमें कवर नहीं है, वहां कितनी सारी एम्बिग्यूटीज है, वहां फिर लिटिगेशन भी पड़े रहते हैं। तो क्या इन दोनों केसेस जब स्ट्रक्चरिंग जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स की होती है, वो इन तीनों तरह से होती है। इन काइंड दे दिया, इन काइंड है लेकिन डेवलपर ही बेच देगा आपके बेहाफ पे, और डेवलपर आपके बेहाफ पे बेच रहा है, ईयर मार्किंग नहीं है, टोटल सेल प्रोसीड्स के ही आपको परसेंटेज मिल रही है। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या हम ये कह सकते हैं कि ये कंडीशन पूरी हो रही है? अपेरेंटली नो। अगर ऑन बिहाफ कर रहे हैं, आपके ऑन बिहाफ आपके बेच रहा है, फिर भी हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई इन काइंड हमारा ये मार्क टावर है, उसको ये हमारे बिहाफ पे बेच रहा है, इसलिए इन काइंड मिला हमको और उसने बेचा, हमको पैसा मिल गया, तो ये तो कंडीशन पूरी होगी। लेकिन जहां सेल्स प्रोसीड्स का परसेंटेज मिल रही हो, वहां अगेन कंट्रोवर्सी कैन बी देयर, क्योंकि अगर वी सी द परपेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस थिंग कि पार्ट ऑफ द सेल कंसिडरेशन रिसीव्ड इन काइंड, तो पर्पस तो यही था कि अनसर्टेनिटी को रिजॉल्व करने के लिए जो चीज इन फ्यूचर डिसाइड होनी है कि उसकी वैल्यू क्या होगी जब वो सेल होगी, तो उन्होंने कह दिया भी अभी तो जितनी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उतने पे टैक्स तो आज दे दो, जब बेचोगे तो डिफरेंस पे टैक्स उस समय दे देना। तो अगर आपको रेवेन्यू की परसेंटेज मिल रही है तो वो भी अनसर्टेनिटी से लिंक्ड है, अनसर्टेनिटीज उसमें भी इन्वॉल्व है। लैंड सेल कंस्ट्रक्शन वहां भी डिसाइड नहीं हो सकता, वहां भी डिटरमाइन नहीं हो सकता। तो उस केस में क्या 45(5)(a) को लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता? अभी आई मीन आई विल लीव इट हियर ओनली बिकॉज दिस विल रिमेन ए डिबेटेबल इशू। यस, नेक्स्ट नाविया। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यस नमाविया, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, एक हमारी बात आई थी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालने के लिए कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? डेवलप्ड रियल एस्टेट की। और जैसा मैंने कहा कि डेवलप्ड रियल एस्टेट जरूरी नहीं है कि पूरे प्रोजेक्ट की लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो जो लैंड ओनर को मिल रही है। अगर लैंड उसने ट्रांसफर ही नहीं किया लैंड ओनर ने, तो केवल सुपर स्ट्रक्चर मिला है उसको, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सुपर स्ट्रक्चर की मिलनी चाहिए। सेक्शन की लैंग्वेज से ये बात नहीं निकल के आती, वहां तो उन्होंने ये कहा है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द रियल एस्टेट फॉलिंग इन द शेयर ऑफ द लैंड ओनर। अब फॉलिंग इन द शेयर ऑफ द लैंड ओनर जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी, तो उसके इसमें अगर पूरी लैंड ट्रांसफर की, फिर तो पूरी लैंड की ट्रांसफर की ट्रांजेक्शन को रिकॉग्नाइज करेंगे, जितना शेयर उसको मिला डेवलप्ड रियल एस्टेट का, उसकी दोनों की लैंड प्लस स्ट्रक्चर की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, उसके ऊपर टैक्स देंगे, और फिर ओनरशिप डेवलपर लैंड ओनर को दोबारा ट्रांसफर करेगा। बट प्रैक्टिकली मुझे लगता नहीं कि दिस इज possible. Extra cost is involved and nobody, either developer or landowner, would make the transaction in such a manner. ऐसे ट्रांजेक्शंस में होगा यही कि पार्शियल लैंड विल बी कंसिडर्ड टू बी ट्रांसफर्ड। और बहुत सारे डिसीजंस हैं 45(5) आने से पहले भी, जहां उन्होंने ये कहा हुआ है कि इस तरह के ट्रांजेक्शंस में only that part of land is being transferred which is falling to the share of the developer. The land which is falling to the share of the landowner, that land has not been transferred. तो अब वहां चैलेंज ये आएगा कि सेल कंसिडरेशन की वैल्यू सुपर स्ट्रक्चर की लगानी होगी जो कि लैंड ओनर की है। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं कि कंबाइंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ लैंड एंड सुपर स्ट्रक्चर माइनस द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द लैंड, उसमें से उसको लेस कर ले, डिफरेंस विल बिकम द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमारे पास फ्लैट की अवेलेबल होती है, जिसमें लैंड भी होती है, सुपर स्ट्रक्चर भी होता है। मान लो वो से 10,000 रुपये स्क्वायर फीट है और केवल लैंड की भी अवेलेबल होती है, उस एरिया में लैंड की क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, मान लो वो 5,000 रुपये स्क्वायर 8,000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो डिफरेंस दोनों का 2,000 रुपये स्क्वायर फीट सुपर स्ट्रक्चर का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो गया। तो दैट टू माई माइंड दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ द सेल कंसिडरेशन फॉर दिस पर्पस। तो इसमें इस तरह के ट्रांजेक्शन में सबसे बड़ा चैलेंज यही आ रहा है कि कैसे इसकी टैक्सेबिलिटी को डिसाइड किया जाए। तो टू माय माइंड इट शुड बी डन लाइक दिस, दैट आप डिफरेंस दोनों का लीजिए, वो सुपर स्ट्रक्चर की वैल्यू है, और लैंड जो ट्रांसफर हुई वो केवल जो लैंड डेवलपर को गई उतनी लैंड ट्रांसफर हुई,
मान लो डेवलपर को 25% लैंड गई, 4 फ्लैट हैं, 4 में से 1 फ्लैट उसको जा रहा है, 25% लैंड गई, 75% सुपरस्ट्रक्चर आपके पास आया, तो 25% लैंड की जो सेल कंसिडरेशन है वो तो होगा 75% सुपरस्ट्रक्चर जो लैंड ओनर को मिला उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25% ऑफ लैंड जो लैंड ओनर की थी, टोटल कॉस्ट उसका 25% लेके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगी। लेकिन अब इस तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग चीज और भी है, क्योंकि उसमें तो टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं आती। वो इसलिए नहीं आएगी टैक्सेबिलिटी की बात कि अगर लैंड ओनर के पास कोई और एसेट्स या रेजिडेंशियल हाउस नहीं है एंड ही इज एलिजिबल टू गेट डिडक्शन अंडर सेक्शन 54F, सब्जेक्ट टू की भी एक हाउस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या 54 में तो हाउस की कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, और उसने अगर हाउस अपना पुराना दिया था उसके बदले में ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो जो भी सुपर स्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट हुआ दैट विल बी कंसिडर्ड एज द इन्वेस्टमेंट मेड इन द न्यू एसेट, न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, then he is eligible to get deduction under section 54। तो वहां वैल्यू कितनी है डिटरमिन करने की जरूरत ही नहीं है कि भाई जो भी आपने लैंड ट्रांसफर की उस पर जितना भी इन्वेस्टमेंट हुआ दैट एंटायर इन्वेस्टमेंट इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। तो वो वहीं से स्क्वायर हो जाता है। इन कैश अगर कोई पैसा मिला है दैट इज गोइंग टू बी टैक्स्ड along with the stamp duty value, अगर कैश में कुछ मिला है, क्योंकि जो जो सुपर स्ट्रक्चर में पैसा लगा वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन जो कैश में मिला वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, तो वो 54 के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। तो उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंड जो भी लैंड ट्रांसफर हुई है वो लेस हो जाएगी, उसको लेस करने के बाद फिर जो पैसा बचेगा, जो भी डिफरेंस बचेगा वो कैपिटल गेन्स होगा। सो आई मीन डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस, बट इन जो कॉमन पैरेलल्स जिस तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें ये चीजें बहुत निकल के आती है कि भाई जो आपका लैंड ट्रांसफर हुई उसके पीछे जितना सुपर स्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हुआ वो तो 54 में एलिजिबिलिटी हो गई, उसके बाद जो कैश में मिला है उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लैंड की ट्रांसफर कर लीजिए, लेस कर लीजिए, डिफरेंस इज ओनली कैपिटल गेन्स। यस, नेक्स्ट मैंने ये केस स्टडी लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लोर्स ऑन प्लॉट ऑफ लैंड। हालांकि ये पहले डेरिवेशन में हमने डिस्कस तो सारी चीजें कर ली हैं कि इस तरह के जो इश्यूज बड़े कॉमन होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है कि ओनरशिप ऑफ लैंड इज नॉट ट्रांसफर टू द डेवलपर। मैंने वही लिखा है, जनरली जो मैंने स्ट्रक्चर देखे हैं या एग्रीमेंट्स पढ़े हैं, इस तरह के जो भी हमारे पास ओपिनियंस आती हैं या केसेस आते हैं, उसमें लैंड ट्रांसफर की इंटेंशन कभी नहीं होती, लैंड ट्रांसफर कभी नहीं करते डेवलपर को, तो इसलिए 45(5)A लगता ही नहीं है उस केस में। बट कई बार जीएसटी की लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि डेवलपर इज एक्टिंग एज ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर यू इफ लैंड इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड। तो वहाँ चूंकि मैं जीएसटी करता नहीं हूँ इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि अगर जीएसटी की कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रही है कि इफ लैंड इज नॉट बीइंग ट्रांसफर्ड देन डेवलपर ही इज नॉट ए डेवलपर, ही इज बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या जीएसटी की अट्रैक्शन हो जाएगी ऐसे स्ट्रक्चर में या नहीं होगी, दैट इज टू बी एग्जामिन्ड, और अकॉर्डिंगली फिर ड्राफ्टिंग उसकी करनी होती है जेडीए की, जो कोलैबोरेशन एग्रीमेंट की, जिससे कि जीएसटी की अट्रैक्शन भी नहीं हो। और अगर जीएसटी के अट्रैक्शन के लिए उसको लैंड ट्रांसफर दिखाना पड़ता है तो फिर हमको प्रोपोर्शनल लैंड वाला जो फंड है उसको लगाना पड़ेगा। फुल लैंड ट्रांसफर वाला तो कोई लॉजिक मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि वो तो कहीं हो ही नहीं रहा। यस, अब इसमें एक और जो बड़ा चैलेंज था इस तरह के हो गया कि जो हम 45(5)A के ट्रांजेक्शन देख रहे हैं उसमें इंडेक्सिंग किस ईयर तक होगी, एंड इंडेक्सिंग के अलावा 54(FEC विद रेफरेंस टू विच ईयर क्लेम कर सकते हैं। ये दो इश्यूज बड़े कंट्रोवर्शियल निकल के आ रहे हैं। पहली चीज इंडेक्सिंग, क्योंकि जब हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की इंडेक्सिंग करते हैं तो इंडेक्सिंग इज अप टू द ईयर ऑफ ट्रांसफर। अब नाउ इन अंडर सेक्शन 45(5)A द ईयर ऑफ ट्रांसफर इज नॉट डिटरमाइंड। तो हमने कहा देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ लैंड बट ईयर ऑफ ट्रांसफर इज नॉट रेलिवेंट। ईयर ऑफ ट्रांसफर डिटरमाइन नहीं होता, इसीलिए तो डिमिंग प्रोविजन लेके आए हैं। उन्होंने ये कह दिया कि भाई जिस साल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होगा उस साल में कैपिटल गेन्स चार्ज हो जाएगा इस ट्रांजेक्शन के ऊपर, लेकिन ये नहीं कहा है कि वो डीम ट्रांसफर मान लिया जाएगा।
the legislation has fallen short of using this language that it will be deemed as transfer in that year. तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर द पर्पस ऑफ इंडेक्सिंग अभी हमको ईयर ऑफ ट्रांसफर डिटरमिन करना पड़ेगा, एंड इंडेक्सिंग केवल उसी साल तक होगी, या इंडेक्सिंग इस साल तक हो सकती है जिस साल में कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो रहा है और टैक्सेबल इवेंट क्रिएट हो रही है. दिस इज वन इशू व्हिच इज बीइंग देयर. टू माय माइंड जिस साल में टैक्सेबल इवेंट क्रिएट हो रही है इंडेक्सिंग उस साल तक होनी चाहिए. चाहे लेजिस्लेशन ने इसको ये टर्म को यूज नहीं किया है कि द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड द ट्रांसफर शैल बी डीम्ड टू बी इन दैट ईयर, बट index for the purpose of indexing when taxable event is being created up to that year indexing should be allowed. This is my view, and I take support from some of the judgments rendered in the context of 45(2) where they have said कि वहां भी इंडेक्सिंग आपको अलाउ हो जाएगी. इंडेक्सिंग के लिए नहीं है क्योंकि वहां और इसमें फर्क है. 45(2) में जिस साल में कन्वर्जन होता है जो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स है वो साल में फ्रीज हो जाता है. तो जिस साल में कन्वर्जन हुआ उसको उन्होंने ट्रांसफर मान लिया और कैपिटल गेन्स भी वहीं कंप्यूट हो जाता है, लेकिन उसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो डिफर होती है. यहाँ कंप्यूटेशन एंड टैक्सेबिलिटी बोथ आर बीइंग डिफर्ड. आप ये देखिए 45(2) एंड 45(5) में देयर इज अ फाइन डिस्टिंक्शन. इन 45(5)(2) द टैक्सेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन्स get freezed in the year of conversion and the transfer of the asset takes place in the year of conversion. तो वहां year of transfer में कोई dispute नहीं है, conversion को ही year of transfer मान लिया, तो वहां तो indexing वहां तक हो जाएगी. लेकिन 45(5)(a) में completion certificate जब इशू हो रहा है उस साल में टैक्सेबिलिटी है, तो कंप्यूटेशन एंड पेमेंट और चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स बोथ आर डेफर्ड. लेकिन ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या है ये डिटरमिनेबल भी नहीं है, डिटरमिन होता ही हो नहीं पाता. वही तो कंट्रोवर्शियल था जिसकी वजह से ये डिमिंग फिक्शन लेके आए हैं. अब इशू आ जाएगा कि इंडेक्सिंग, तो टू माय माइंड इंडेक्सिंग शुड बी अलाउड अप टू द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज बीइंग इशूड और कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स इज बीइंग मेड. दिस इज वन पॉइंट. ये भी इतना बड़ी इशू नहीं है, लेकिन जो 54 है 54 EC की डिडक्शन है वो ज्यादा बड़ा इशू आ जाता है क्योंकि these deductions are allowed with reference to the year of transfer. अब year of transfer again 45(2) में भी ये इशू था कि 45(2) में मैं पैरिटी ड्रॉ करता हूं कि 45(2) में there are judgments जहां उन्होंने ये कहा कि year of transfer वहां डिटरमाइंड है कि भाई 3 साल पहले हो गया जब कन्वर्जन हुआ और 3 साल के बाद टैक्सेबिलिटी हो रही है. तो जब टैक्सेबिलिटी होती है लिक्विडिटी तब आएगी, और जब लिक्विडिटी आएगी तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आगे for getting exemption in section 54 or 54F or 54 EC. तो वहां ये इशू आया कि भाई जिस साल में अब इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो द ईयर इन विच चार्जेबिलिटी टू टैक्स इज बीइंग क्रिएटेड उस साल के रेफरेंस से 54 की डिडक्शन मिल जानी चाहिए. तो उसको कई जजमेंट्स में अप्रूव किया है कि ठीक है उस साल से मिल जाएगी आप. तो अगर वहां मिल जाएगी तो यहाँ फिर कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, यहाँ भी मिल जानी चाहिए. लेकिन अगर हम प्लेन रीडिंग ऑफ सेक्शन देखें तो दीज अलाउबिलिटी इज विद रेफरेंस टू द ईयर ऑफ ट्रांसफर. विद इन 6 मंथ इन्वेस्टमेंट कर दिया 54 EC के लिए, 54 के लिए अप टू द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न कर दिया, 54F के लिए अप टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न कर दिया. अदरवाइज कैपिटल गेन्स अकाउंट इसकी में आप पैसा रखो. अब पैसा तो है ही नहीं, लिक्विडिटी तो है ही नहीं, तो आप कैसे रख लोगे, और ईयर ऑफ ट्रांसफर डिटरमिन ही नहीं हुआ है. तो दिस इशू विल रिमेन, बट टू माय माइंड वी कैन ड्रॉ strength from the judgment which has been rendered in the context of 45(2) where it has been said that deduction or exemption are beneficial provisions and these should be interpreted liberally. When liquidity is available only then this deduction can be availed. लेकिन यहाँ तक भी ठीक है. अब एक इशू और एक कॉम्प्लिकेशन और आ जाती है. अगर एग्रीकल्चरल लैंड है और उसको आप चाहते हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड में हमने के बदले एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट करना है, 54B लेना है, तो उसको 54B लेने के लिए किस समय ट्रांसफर तो आपका पहले होगा है, और अब आपको पैसा मिलेगा अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब मिल रहा है, तो जिस समय कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल रहा है उस समय उसका करेक्टर एग्रीकल्चर लैंड रहा नहीं. एग्रीकल्चरल लैंड तब तक थी जब तक ट्रांसफर नहीं हुई. जब डेवलपर को ट्रांसफर हो गई तो उसका करेक्टर चेंज हो गया,
उसके ऊपर उसने प्रोजेक्ट बना दिया, उसके ऊपर उसने CLU ले लिया, उसके ऊपर अप्रूवल आ गई, उसका कैरेक्टर तो चेंज हो गया। तो पहले 2 सालों में उसका एग्रीकल्चरल कैरेक्टर है वो तो डाइल्यूट हो गया, वो तो है नहीं, ये भी उसकी कंडीशन है 54B के लिए कि पिछले 2 सालों में उस पे एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए। तो यहाँ भी इशू ये आ जाएगा कि ईयर ऑफ ट्रांसफर पहले है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाद में मिला है, टैक्सेबिलिटी वहां क्रिएट हो रही है, और फिर अगर उस साल के रेफरेंस से आप 54B लेना चाहते हैं तो क्या मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, आई एम नॉट एबल, आई मीन अगेन हाईली कंट्रोवर्शियल। अगर कोई जजमेंट आएगा या कोई इंटरप्रिटेशन होगा देन वी विल सी, अदरवाइज दीज आर सर्टेन कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज व्हिच रिमेन अनआंसर्ड। Yes, next let us go forward. Maria. Yes, so this is all about 45(5)(a). उसमें जो भी related issues थे, I have tried to address all those issues. अब 45(5)(i) के बाद मुझे टाइम का बता देना कब तक बोलना है, क्योंकि ये तो चलता रहेगा। अब चलो लेट मी एड्रेस कि अब सेकंड एस्पेक्ट आता है कि कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे होंगे जो कि 45(5) में फॉल कर रहे हैं, उसके लिए इंडिविजुअल और HUF लैंड ओनर होना चाहिए, स्पेसिफाइड एग्रीमेंट की जो भी कंडीशंस है वो पूरी होनी चाहिए, तभी 45(5) में फॉल होंगे। तो JDA जो होते हैं वो एक कैटेगरी ये वाली होगी, लेकिन काफी बड़ी कैटेगरी और बच जाती है जो कि 45(5) में फॉल नहीं कर रही। कोई भी लैंड ओनर अगर अदर देन इंडिविजुअल और HUF है, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, LLP हो, कंपनी हो, या स्पेसिफाइड एग्रीमेंट नहीं है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है, तो 45(5) एप्लीकेबल नहीं होगा। तो वहाँ 45(1) और जो पुराने वाली कंट्रोवर्सीज हैं वो सारी आ जाएंगी। तो हमको दोनों को एड्रेस करके चलना है कि अगेन कि अब इस केस में किस तरह से देखा जाएगा। तो यहाँ अगेन हमें ये देखना है व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन कि व्हाट इज द ईयर ऑफ ट्रांसफर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सेल कंसिडरेशन। दीज टू थिंग्स आर टू बी डिटरमाइंड। नाउ लेट अस सी इसको कैसे कर सकते हैं। अब पहले तो बात आती है ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड। अब ईयर ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड के बारे में बहुत सारी पहले कंट्रोवर्सीज थी और बहुत सारे जजमेंट्स भी थे। चतुर्वेद दास कपाड़िया का जो जजमेंट है उसने बड़ा हैवक प्ले किया है। चतुर्वेद दास द्वारकादास कपाड़िया के जजमेंट ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा हैवक प्लेट किया, और मैं समझता हूं कि दिस इज द मोस्ट मिसरेड एंड मिसअप्लाइड जजमेंट बाय द लोअर अथॉरिटीज। इवन बहुत ज्यादा काउंसिल की तरफ से भी आर्गुमेंट्स बहुत अच्छे नहीं हुए इसके बारे में। उसके बाद जो जजमेंट्स आए उनमें सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश की गई। मिसरेड आई मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखो चतुर्भुज कपाड़िया में जो कोर्ट ने कहा वो क्या कहा कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑल राइट्स ऑफ ओनरशिप द ड्राफ्टिंग ऑफ जो JD है इट इज ऑफ सच ए नेचर that at the time of entering into joint development agreement, possession has been given and all rights of ownership have been transferred. So possession is akin to transfer of ownership. Therefore, the entering of joint development agreement is the date on which transfer will be deemed to have taken place. तो बात केवल ये नहीं थी कि possession दे दिया तो ये मान लिया जाएगा कि ट्रांसफर हो गया, लेकिन इस जजमेंट को इंटरप्रेट इस तरह से किया गया आगे कि अगर पोजेशन ऑफ लैंड दे दिया है तो ट्रांसफर मान लिया जाएगा। छूट तो यार कोई कहता है पोजेशन दे दिया तो ट्रांसफर हो गया, ये तो चतुर्वेद दास कपाड़िया कह रहा है। नहीं, उन्होंने ये कहा कि दैट इवेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द JDA द हैंडिंग ओवर ऑफ पोजेशन इज इन द नेचर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब है कि डेवलपर गेट्स पोजेशन ऑफ लैंड, डेवलपर गेट्स कंट्रोल एंड complete rights, unhindered rights on the use of the land and on the sale of the land at its own discretion, and transfer of land is irrevocable। जब तक ये तीनों बातें नहीं हो कि आपने पोजेशन दिया, पूरा कंट्रोल यूज करने का और सेल करने का फर्दर लैंड को या उसके ऊपर डेवलप्ड रियल एस्टेट को, वो डेवलपर को मिल गया और ट्रांसफर इररिवोकेबल है। अगर उसमें से कोई भी पार्ट वापस लैंड ओनर अगर लेना चाहेगा तो फिर डेवलपर की ओनरशिप हो गई, या डेवलपर उसको रजिस्ट्री करके देगा, सेल डीड करके देगा डेवलप्ड रियल एस्टेट की। अगर ये तीनों बातें पूरी होंगी तभी तो हम ये कह सकते हैं कि कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द लैंड हैज बीन ट्रांसफर्ड।
the transfer is akin to the transfer of ownership. लेकिन ये इन पार्ट्स को मिस कर दिया गया, प्रोबेबली इसीलिए जो आगे जो जजमेंट आए, बलबीर सिंह मैनी का आया या ससैया स्टील्स का बड़ा अच्छा जजमेंट आया है बाद में, और उनमें इस चीज को उन्होंने कहा कि ट्रांसफर तभी होगा जबकि मेयर हैंडिंग ओवर द पोजेशन डज नॉट मीन ट्रांसफर. Possession may be of different nature. When the right to use and sell at its own discretion by the developer has been given and it is irrevocable, only then. अब JDA जो बनते हैं उनमें तो बहुत सारी कंडीशंस टर्म्स लगा देते हैं, JDA फॉल आउट होते हैं. बलबीर सिंह मैनी में क्या हुआ, JDA फॉल आउट हो गया. अब फॉल आउट हो गया उसके बाद भी कह रहे हैं नहीं ये तो JDA आपने कर लिया था, ये तो ट्रांसफर हो गया था, वहां तो टैक्स दे दो पहले आप. कोर्ट ने कहा भाई जब JDA फॉल आउट ही हो गया तो फिर ओनरशिप कहाँ ट्रांसफर हुई? या तो फॉल आउट के समय फिर वापस लैंड की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए थे फ्रॉम डेवलपर टू दी लैंड ओनर, जो वापस ओनरशिप जानी चाहिए. एक बार अगर ओनरशिप चली गई तो दोबारा ओनरशिप आने के लिए फिर दोबारा तो डॉक्यूमेंटेशन होगा. अगर विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन JDA कैंसिल होने पे ओनरशिप वेस्ट नहीं हुई और वो वापस रिवाइव हो गई विद द लैंड ओनर, देन वेयर इज द ट्रांसफर एट द फर्स्ट स्टेज? There was no transfer. Once transfer has taken place, then retransfer is required. ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ, ये जो आगे का वर्ड है. लेकिन जो एसेंस है वो यही है. अगर ट्रांसफर इरिवोकेबल है तो वापस फॉल आउट पे भी वो ट्रांसफर वापस नहीं होगा, फिर तो राइट ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है, आप कंपनसेशन का क्लेम कर सकते हो, लेकिन लैंड को वापस नहीं ले सकते. लैंड वापस आनी है तो उसके लिए री ट्रांसफर होगा, उसके लिए नया डॉक्यूमेंटेशन होगा. अब वो चाहे सेल डीड से हो या किसी और चीज से हो, वो कैसे हो सकता है, वो अलग चीज है. सेल डीड होगी जो व्हाट्सएवर इट में भी सेल एग्रीमेंट से होगा, जैसे पहले हुआ था वैसे भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए नए डॉक्यूमेंट बनेंगे. केवल JDA कैंसिल हो गया, फॉल आउट हो गया, उसकी वजह से वापस रिवाइव ओनरशिप हो गई, अगर ऐसी चीज है इट मींस ट्रांसफर वाज इरिवोकेबल एंड इट वाज कंडीशनल ऑन सर्टेन इवेंचुअलिटीज, ऑन सर्टेन कंटिंजेंसीज. तो अगर JDA में इस कंटिंजेंसीज हैं और पोजीशन दे भी दिया तो इट इज पोजीशन जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रियल एस्टेट. इट इज नॉट दैट ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड. और अगेन 53A को भी अगर हम अगर क्लोजली पढ़ें तो वहां भी यही चीज निकल के आती है, क्योंकि उन्होंने वहां से भी यह कि सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई लेकिन पार्ट परफॉर्मेंस कर दिया, और पार्ट परफॉर्मेंस में जो इंटेंशन है वो ओनरशिप ट्रांसफर करने की है. वहां इंटेंशन की बात है कि इंटेंशन इज टू ट्रांसफर द ओनरशिप. तो अगर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एब्सोल्यूट नहीं है, वो इरिवोकेबल नहीं है, चाहे वो फ्यूचर में हो रही है, that the developer is willing to perform his part of obligations. His part of obligation is that उसने फर्दर पेमेंट करना है, उसके बाद उसको पूरी, लेकिन ओनरशिप उसको पूरी मिलेगी. सेल डीड एग्जीक्यूशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट अगर वो फुल राइट्स को एंजॉय कर रहा है तो उसको भी अपन को थोड़ा सा क्लोजली अगर रीडिंग करेंगे तो इसलिए 53A के रेफरेंस में भी जो आगे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं उन्होंने उसमें भी एक बोला है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज द एसेंस, दैट इज द क्रक्स. एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर होनी चाहिए. अगर कोई भी रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस हैं JDA में देन वी कैन नॉट से दैट. तो इसलिए ये डिटरमिन करने के लिए कि ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ अंडर सेक्शन 247 द कंप्लीट JDA एज इन टोटो हैज टू बी रेड एंड देन वी हैव टू सी कि पूरे राइट्स उसको डेवलपर को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं ओनरशिप के. ओनरशिप के राइट्स में राइट टू यूज एंड राइट टू सेल at its own discretion is the most important right. अगर डेवलपर को राइट नहीं मिलता डेवलप्ड रियल एस्टेट खुद ही बेचने का, चाहे उसके लिए पावर अटॉर्नी के थ्रू हो चाहे सेल डीड के थ्रू हो, कैसे भी हो, पावर अटॉर्नी फिर जनरल पावर अटॉर्नी एब्सोल्यूट होनी चाहिए, इरिवोकेबल होनी चाहिए, वो रिवोक नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में. अगर वो राइट्स मिल गए हैं उसको, लैंड ओनर से नहीं पूछा जाएगा. अगर DLF अगर करता है या रहेजा अगर करता है, बड़े बिल्डर करते हैं तो वो सारे राइट्स ले लेते हैं. तो वहां ये इशू आ जाता है कि भी डेवलपर को सारे राइट्स ओनरशिप के मिल गए. अगर फॉल आउट भी होगा तो कंपनसेशन की डिमांड हो सकती है, लेकिन लैंड वापस रिवर्ट बैक नहीं होगी. अगर किसी भी कंडीशन में लैंड वापस जा सकती है फॉल आउट पर, देन इट इज नॉट ए ट्रांसफर टू माय माइंड. यस, कैन वी गो नेक्स्ट पॉइंट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड मविया. Yes, I have already discussed this. Next.
यस 53A का ये भी मैंने अभी जैसे कहा कि वहां भी है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। पहले तो 53A में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट वाली बात ही नहीं थी, ये भी 53A के लिए भी उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड तो विदाउट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट आप 53A को लगा रहे हो कि ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, इट कैन नॉट बी। पोजेशन हैंडिंग ओवर हो, पार्ट पेमेंट हो गया हो एंड ट्रांसफर इज विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन, तो ये 4 कंडीशन 53A में लिखी हुई है। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट, तो नॉट मेयरली फिजिकल पोजेशन बट इफेक्टिव कंट्रोल द नेचर ऑफ ओनरशिप राइट्स टू बी ट्रांसफर्ड। अब ये जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, केसेस आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें ये चीज बड़ी क्लियर है, इसलिए वी विल हैव टू लुक इनटू दिस। तो मेयरली पोजेशन मिल गया, पोजेशन दे दिया, उस बात से इन्फ्लुएंस नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। वी हैव टू रीड द जेडीए इन टोटो एंड लुक इनटू दैट द पोजेशन इज in the nature of which is akin to transfer of complete ownership, complete rights of ownership, not ownership, complete rights of ownership to the developer. Only then we can say that transfer has taken place. Next please. तो ये जजमेंट्स का मैंने थोड़ा एक्सट्रैक्ट देने की कोशिश की है, कुछ जजमेंट्स का, जैसे चतुर्भुज दास कपाड़िया को भी देखें, अब हर कोई अपने अपने एंगल से पढ़ता है। नेक्स्ट प्लीज माविया। अब तो चतुर्भुज दास जजमेंट में भी कोर्ट ने क्या रीड किया है कि इफ द कॉन्ट्रैक्ट रीड एज ए होल इंडिकेट्स पासिंग ऑफ और ट्रांसफरिंग ऑफ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द डेवलपर, देन द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी रेलिवेंट टू डिसाइड द ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी। तो पहला जो पार्ट है उसको छोड़ दिया कि डेट ऑफ, दूसरे पार्ट को ले लिया बस बाद में कपाड़िया में कि डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी रेलिवेंट, डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी रेलिवेंट। ये पेशेंट हैंडओवर हो गया जेडीए पे, तो दैट इज द रेलिवेंट डेट, तो उतने पार्ट को ले लिया। लेकिन वो उसके पास राइडर है, राइडर ये है कि ट्रांसफरिंग ऑफ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द डेवलपर, इट इज इन दैट नेचर, जो जेडीए उनके सामने था, इसलिए उन्होंने कहा कि जो पोजीशन दिया है दैट इज अकिन टू ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो आई मीन अनदर देखिए आप, इवन ये जो था चरणजीत सिंह अटवाल के केस में, जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि डेवलपर शुड बी एक्चुअली होल्डिंग, यूजिंग एंड एंजॉयिंग इट विदाउट इंटरफियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ अदर्स। तो यूजिंग एंड एंजॉयिंग द प्रॉपर्टी विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ द अदर पर्सन और द लैंड ओनर एट ए लेटर स्टेज, ओनली देन वी कैन से दैट 53A of Transfer Property Act can be applied. Next, बलबीर सिंह मैनी, आगे करना माविया, एक और आगे करना। यस तो बलबीर सिंह मैनी में बड़ी इंपॉर्टेंट दो बातें कही। पहली चीज तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, और दूसरी चीज फर्दर द ओनर हैविंग डिलीवर्ड ओनली द पोजेशन ऑफ लैंड टू द डेवलपर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस टू डेवलप द प्रॉपर्टी अंडर द एग्रीमेंट एंड एट नो स्टेज purported to transfer rights akin to ownership to the developer. Subclause 6 of section 247 is also not attracted to the impugned transaction. क्योंकि 5 को उन्होंने एक्सक्लूड किया कि रजिस्टर्ड नहीं है इस वजह से, और 6 को किया कि ओनरशिप के पूरे राइट्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, केवल एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विद कंडीशंस इज नॉट सफिशिएंट एनफ। नेक्स्ट एक और ये जजमेंट मैंने किया है इन्फोटेक का, इसमें जो पार्शियल ट्रांसफर है कि जितना शेयर डेवलपर को मिलेगा उतनी ही लैंड ट्रांसफर हुई है, उसके बारे में ये जजमेंट है। तो आई विल जस्ट रेफर, लेट अस मूव नेक्स्ट। यस डिटर्मिनेशन ऑफ सब, ये पहला बात तो हो गया कि ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर कैसे डिटर्मिन होगा, तो उसमें 247 से जाएंगे, और 247 में हमको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि कंप्लीट ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है, सेल डीड एग्जीक्यूट ना हो। लेकिन इसमें मेरा एक इशू और भी है, अभी जब बेनामी एक्ट को और हम पढ़ेंगे तो बेनामी एक्ट के बाद आई एम नॉट वेरी श्योर कि क्या अब ट्रांजेक्शन इस तरह से हो सकते हैं कि जहां विदाउट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट लैंड ट्रांसफर हो सकती है या लैंड को होल्ड कर सकते हैं। Again, this will become, because then we will have to examine the Benami Act whether such a transaction may fall within the ambit of Benami property. This is another angle. I am not touching that angle right now. But the only thing is that 53A में भी registered agreement की बात इसीलिए है कि अब registered agreement जो होते हैं
उनमें स्टैम्प ड्यूटी ऑलमोस्ट उतनी लग जाती है जितनी सेल डीड पे लगती है. तो द आइडिया इज कि दो सेल डीड हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड, बट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में कहीं किसी स्टेट में 50% लगती है, कई स्टेट में फुल भी लगती है. 6% जैसे फुल स्टैम्प ड्यूटी है तो 3% लगती है, किसी में पूरी 6% भी लग जाती है. तो idea is that if registration is there, only then that agreement can fall within the ambit of section 53A of the Transfer Property Act. If it is not registered तो fall ही नहीं कर सकता. And registered होने के बाद ओनरशिप के राइट्स सारे उसको जाने चाहिए. अगर जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट है वो रजिस्टर्ड हो रहा है और क्योंकि उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के ऊपर, लेकिन अगर रजिस्टर्ड नहीं हो रहा है तो और उसमें रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस हैं जहां एब्सोल्यूट ओनरशिप डेवलपर को ट्रांसफर नहीं हो रही है. इट इज ओनली ट्रांजेक्शन ऑफ लाइसेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ द लैंड, और देयर आर रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस वेयर ओनरशिप मे फॉल बैक इन सर्टेन कंटिजेंसी, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस टू द लैंड ओनर. तो वहां वी कैन नॉट से दैट द ट्रांसफर हैज टेकन प्लेस. तो उस केस में व्हेन द प्रोजेक्ट वुड बी कंप्लीटेड एंड sale deed will be executed by landowner to the developer. और अब इसमें भी ये देखो, जब लैंड ओनर डेवलपर को सेल डीड करेगा या तो लैंड की, या ये हो सकता है कि देयर में बी ट्रिपैट्रिएट एग्रीमेंट बाय लैंड ओनर, डेवलपर एंड टू द कस्टमर, तीनों पार्टियों का, वेयर लैंड ओनर जेडीए में बहुत तरह के, पर्टिकुलरली इन महाराष्ट्र, इन गुजरात, इन आंध्रा, जनरली इस तरह से जेडीएस बनते हैं जहां, और एंड आई फील दिस इज द राइट स्पिरिट ऑफ जेडीए, दैट लैंड इज ओन्ड बाय द लैंड ओनर, ओनली डेवलपमेंट राइट्स आर गिवन टू द डेवलपर एज ए लाइसेंसी, एंड आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ रियल एस्टेट ट्रिपैट्रिएट एग्रीमेंट इज एंटर्ड, लैंड ओनर ट्रांसफर्स अनडिवाइडेड पोर्शन ऑफ लैंड to the customer, developer transfers superstructure made on that by him, because developer owns superstructure, landowner owns land, and customer gets the ownership of land and developer independently from both the parties in a single agreement. So this is the right spirit of the joint development agreement to my mind. And in true sense, the transfer of title deeds or transfer of ownership to the customer should travel in this manner. If it travels in this manner, then hardly there is any problem. The land never takes, the transfer of land never takes place by landowner to the developer. It is only that landowner is contributing land and developer is constructing superstructure, and both are entering into a tripartite agreement with the customer to transfer land and superstructure of their ownership of their right independently. So if it is structured like this, okay. But in case land is transferred by the landowner to the developer, either as per specified agreement or as per under 53 of the Transfer Property Act, then developer gets the complete right of sale. In that situation, we will have to determine the event when the right of ownership, right of transfer of ownership has been handed over by the landowner to the developer. तो जेडीए में या तो होगा, और जेडीए में नहीं है तो हो सकता है जिसमें पावर अटॉर्नी एग्जीक्यूट हो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सेल डीड. जनरल पावर अटॉर्नी जब देते हैं बाय लैंड ओनर टू द डेवलपर कि कस्टमर को वो सेल डीड एग्जीक्यूट कर सकता है एट इट्स ओन डिस्क्रिप्शन without any interference of the landowner. That can be the event when it can be said that the ownership has been transferred. So I mean, this is a matter of facts, and depending upon the complete terms and conditions of the joint development agreement and other power attorneys or other documents executed, we will have to take a decision whether the ownership has been transferred or not. So this is one point that we will have to determine the sale of the transfer. And second is determination of sale consideration. सेल कंसिडरेशन में अगेन द इशू कम्स कि अगर इन काइंड मिला है तो 45(5) में तो डिमिंग प्रोविजन लगा दिया, लेकिन यहाँ सेल कंसिडरेशन कैसे मिलेगा, कैसे डिटरमिन होगा? अगर परसेंटेज ऑफ द सेल प्रोसीड्स है या इन काइंड मिल रहा है और जो अभी ये सेल नहीं हुआ है तो उस केस में कैसे होगा? इट बिकम्स अगेन ए कंट्रोवर्शियल इशू. वहाँ वी कैन गो टू सेक्शन 50D
50D section says where sale consideration is not determinable. In that case, the fair market value of the developed real estate as on the date of transfer has to be taken as the value of the sale consideration. Though 50D section was introduced in some other context, but whether in the case of joint development agreement 50D can be applied, and the value of sale consideration in those cases where the consideration is in kind can be taken to be the fair market value. वहाँ जो stamp duty value use नहीं हुआ है, वहाँ fair market value of the property to be received in kind, that is to be considered. So again, I mean that was a challenge earlier also, that will remain a challenge now also, that how the value of sale consideration is to be determined, because the at the time if transfer has taken place, or at the time of JDA, or at the time of execution of the power of attorney, then sale consideration की क्या value होगी for the real estate which is to be developed and to be received in future. Again all those controversies will remain there, but to my mind we can draw a parity from 45(5)(a), and this may be pleaded that at this stage only the fair market value or the stamp duty value of the developed real estate should be taxed, and the difference of the access, I mean again the same provision should be applied, that what is the cost of acquisition that may be taken to be the sale value which has been considered here, and later on if it is being sold at a higher value, then the difference may be taxed at second stage. Similarly, I mean again this law is yet to be developed, yet to be looked into. Next, please. टैक्सेबिलिटी ऑफ अर्नेस्ट मनी, ये हमने डिस्कस कर लिया है. अब तो काफी जजमेंट्स भी इसके ऊपर आ गए हैं. 45(5)(a) से भी स्ट्रेंथ मिल सकती है कि वो अलग से टैक्सेबल नहीं होगा, इवन इफ इट इज नॉट रिफंडेबल, एंड even then it should not be taxable in the year of receipt, because if some security or earnest money, even if it is non-refundable, has been received, it is part of the total sale consideration only. But in case JDA falls out and the amount is forfeited, in that situation, in the year, in that case, in the year in which, am I laudable, Sunil ji? Yes sir, yes. 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 Oh, okay. मेरे यहाँ से जरा वो निकल गया है. No, you are audible, sir. We can hear you very well. In that case, the year in which the amount which becomes non-refundable and forfeited, then in that year only it should be taxable, not prior to that. That is the view which can be drawn, which can be taken. Next slide is just मुझे एक मिनट दीजिए जरा, मेरा ये yes next please. कैपिटल एसेट और बिजनेस एसेट. यस, तो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि टैक्सेबिलिटी लैंड ओनर के हैंड में देखने के लिए सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कैपिटल एसेट है या बिजनेस एसेट है. अगर कैपिटल एसेट है तभी ये 45(5)(a) या 53(a) या ट्रांसफर अंडर सेक्शन 247 ये सारे इश्यूज आएंगे. बट इफ इट इज ए बिजनेस एसेट, इट इज स्टॉक इन ट्रेड, तो उसके क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, उसके ऊपर देयर आर प्लथरा ऑफ जजमेंट्स. द मेन जो क्रक्स है वो मैंने 3-4 बातों में देने की कोशिश की है कि कोई भी असेट क्या स्टॉक इन ट्रेड या बिजनेस असेट कब मानी जा सकती है, व्हाट इज द इंटेंशन behind investment, what is the frequency, whether the landowner is involved in the transaction of adventure, whether he is doing the adventure. अब 45(5)(a) में भी landowner को in kind प्रॉपर्टी मिल रही है, तभी उसका करेक्टर कैपिटल एसेट ही रहा है. क्योंकि जब इन काइंड मिलती है, ये जैसे अभी हमने बात किया सेल कंस्टिट्यूशन के बारे में, दैट इन काइंड अगर
डेवलप्ड रियल एस्टेट एज ए सेल कंसिडरेशन मिलता है अगेंस्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड, तो उसमें एक इश्यू और भी आ सकता है कि वेदर देयर इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू बिजनेस एसेट, क्योंकि व्हेन a landowner is getting sale consideration as a percentage of sales revenue or as certain percentage of the developed real estate, it means that the landowner is sharing the risk and reward of the business with the developer. अगर फिक्स अमाउंट नहीं है, आपको परसेंटेज मिलनी है, तो इट मीन्स कि यू आर स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द डेवलपर, क्योंकि बिजनेस की सबसे बड़ी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है बिजनेस करने की, कि यू आर शेयरिंग रिस्क एंड रिवार्ड। अगर मार्केट कंडीशन अच्छी होंगी तो ज्यादा पैसा मिलेगा, खराब हो जाएंगी कम पैसा मिलेगा। तो बिजनेस की जो रिस्क एंड रिवार्ड है, तो ये एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है डिसाइड करने के लिए असेट इज कैपिटल असेट और बिजनेस असेट, कि वेदर यू आर शेयरिंग द रिस्क एंड रिवार्ड of the transaction with the developer. When the sale consideration is linked with the real estate being received in kind or as percentage of sales revenue, तो अभी कभी मैंने देखा नहीं डिपार्टमेंट ने बहुत ज्यादा इस इश्यू को ड्रैग किया हो या बहुत ज्यादा उठाए हो काफी केसेस में, बट देयर कैन बी एन आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द डिपार्टमेंट that then the character of the land is converted from capital asset to business asset. Then it should be taxed as a business asset, not as a capital asset. लेकिन 45(5)(a) में दो consideration is being received in kind, still it remains capital asset. ये एक चूंकि ऑलरेडी लॉ में इनबिल्ट है, तो अगेन वन कैन ड्रॉ ए पैरिटी एंड वन कैन आर्ग्यू दिस ऑल्सो दैट landowner himself is not involving in the adventure, in the transaction of adventure. He's not doing business. If somebody else is doing, तो that is only a way of computation. मैं दोनों तरह के आर्गुमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ. That is only a way of computation of sale consideration, which is linked with the sale proceeds, or which is linked with the, or which is being linked with the sale consideration being received in kind. But nowhere landowner is engaged in the activity of doing the business. कई जेडीज होते हैं जहां लैंड ओनर को कुछ पार्टिसिपेट करने की भी पावर होती है. ऐसे केसेस में वो अपने राइट्स रखता है कि मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ डिसीजन मेकिंग में, इसमें उसमें. वहां ये इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लैंड इज कंसिडर्ड एज कन्वर्टेड इनटू बिजनेस एसेट. दैट व्यू कैन बी टेकन. बट कैपिटल एसेट और बिजनेस एसेट लैंड है या नहीं है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में हो सकता है कैपिटल एसेट ही रहे, क्योंकि 45(5)(a) में फॉल कर रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. उसके अलावा भी वन कैन आर्ग्यू टेकिंग द स्ट्रेंथ फ्रॉम देयर. But if it is a business entity which is owning the land, and then you are entering into a joint development agreement, then we will have to strictly look into the parameters, whether the character of the land remains capital asset or it becomes business asset. So depending upon the treatment in the hands of the landowner and the nature of the transaction entered with the developer, one will have to decide whether the character remains capital asset or business asset. If it is business asset, then the taxability is entirely different. वहां फिर ट्रांसफर की डेफिनेशन 247 की नहीं लगेगी. वहां नेक्स्ट लेना माविया, मैंने शायद ये भी स्लाइड ली हुई है. यस, वहां फिर AS9 के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि बिजनेस एसेट के केस में AS9 लगता है. AS9 मींस व्हेन द रिस्क एंड रिवार्ड ऑफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड. और रिस्क एंड रिवार्ड कब ट्रांसफर होगा? व्हेन द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. और ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए 247 की डेफिनेशन नहीं लगेगी. दैट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट. वहां फिर ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए डेफिनेशन या जो पैरामीटर्स लगाएंगे वो रिस्क एंड रिवार्ड बिजनेस की जब ट्रांसफर होती है एज पर दी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उस केस में कब ट्रांसफर होती है. तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी वही क्राइटेरिया लगने चाहिए. इट मींस कि जब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप विल वेस्ट फ्रॉम द लैंड ओनर टू द डेवलपर कंप्लीटली, देन दोज क्राइटेरिया विल बी एप्लीकेबल. तो हालांकि 247(5) में भी अब धीरे धीरे वही क्राइटेरिया लगा दिए हैं, तो इसलिए यहाँ भी वही क्राइटेरिया लगाएंगे तो हो सकता है एट पार आ जाए. लेकिन पहले जो इंटरप्रिटेशन चल रहा था 247(5) का, वो डिफरेंट था. अब चूंकि वो कोर्ट उसी उस पे ले आए हैं कि जहाँ ओनरशिप ट्रांसफर कंप्लीट होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, तो इसलिए हो सकता है कि जिसमें कम एट पार. यस, नेक्स्ट प्लीज.
तो लैंड ओनर के लिए 45(5)(a) एंड 45(1) में क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या कंट्रोवर्सीज हैं, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, कुछ चीजें रिजॉल्व हैं, कुछ चीजें अनरिजॉल्व रहती हैं. आई हैव ट्राइड टू फ्लैग ऑल दोज थिंग्स. लास्ट इशू कम्स रिगार्डिंग द डेवलपर्स, कि टैक्स इश्यूज फॉर डेवलपर्स क्या होंगे, क्योंकि डेवलपर्स के लिए अकाउंटिंग इज एंटायरली डिफरेंट. इन क्रक्स आई कैन से कि पहले 2012 से पहले या 2016 से पहले ये बड़ी कंट्रोवर्सी थी, और उसमें आपको हर 2-3 साल में अलग अलग डिसीजंस मिल जाएंगे, अलग अलग लॉ मिल जाएगा. कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज हुए हैं, कभी इनकम टैक्स का जो आउटलुक है वो चेंज हुआ है. लेकिन 2012 में गाइडेंस नोट इंस्टीट्यूट का आया, जिसमें उन्होंने कह दिया कि डेवलपर विल ऑल फॉलो पीसीएम. 2016 में जब आईसीडीएस आ गए तो इनकम टैक्स में इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, एंड दे हैव सेड that PCM will be applicable in the case of the developer. तो now percentage of completion method ही लगाना होगा. लेकिन एक बड़ा अच्छा बड़ा स्ट्रेंज डेवलपमेंट और हो गया इस बीच में. 2016 में ही ये हुआ, 1 अप्रैल 2016 से IFRS रिगार्डिंग दी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स रिवाइज हुआ. पहले 2016 से पहले IFRS ये कहता था, IFRS क्योंकि अब इंड AS में भी IFRS लगते हैं. इंड AS 11 है. इंडिया में अब 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चलते हैं. वन इज इंड AS 11, जो बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं वो IFRS को फॉलो करते हुए इंड AS 11 है, जिसमें IFRS के प्रोविजन लगते हैं बड़ी कंपनियों के लिए, जिनकी टर्नओवर शायद 500 करोड़ से ऊपर है उसके लिए. लेकिन छोटी कंपनियों के लिए अभी इंड AS नहीं लग रहे, उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो जनरल पहले वाले थे वही लगते हैं. तो वहां तो अकाउंटिंग जो गाइडेंस नोट है वो यूज हो रहा है, उसमें तो उन्होंने बोल दिया कि PCM लगेगा. लेकिन IFRS 2000 से पहले कहता था कि PCM लगना चाहिए कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर या जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर. लेकिन 2016 में IFRS में अमेंडमेंट आ गया और उन्होंने ये बोल दिया जिस समय सेल डीड एग्जीक्यूट होगी, टाइटल ट्रांसफर होगा ओनरशिप का, ओनली देन रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, नॉट प्रायर टू दैट. तो उन्होंने PCM को डिबार कर दिया, बंद कर दिया, खत्म कर दिया. तो अब वो ये एक स्टेंट सिचुएशन शुरू हो गई. पहले हम लोग कंट्रोवर्सी में रहते थे. 2098 से लेके और 2016 तक मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर इतने प्रोग्राम किए, हमने इतने डिस्कशन किया, उन सब में ये कंट्रोवर्सी हमेशा रहती थी. हर 2-3 साल में कुछ चेंज हो जाता था. हम कहते थे कि नहीं, PCM नहीं लगना चाहिए, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड लगना चाहिए. वो कहते नहीं, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, वो लगना चाहिए. उस पर हम 2-3 समर सॉल्ट हुए. 2012 में हम सेटल हुए, 2016 में ICDS सेटल हो गया, और 2016 में IFRS ने उल्टी पलटी खा ली. उन्होंने बोल दिया कि कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट मेथड लगेगा इन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स. मींस जिस समय ओनरशिप के टाइटल डीड ट्रांसफर हो रहे हैं, ओनरशिप पूरी ट्रांसफर हो रही है, ओनली देन आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कीजिए. उससे पहले वो वर्क इन प्रोग्रेस ही रहेगा, आपको PCM मेथड पर नहीं करना. PCM मेथड क्या है, बस लास्ट स्लाइड में मैं ये और डिस्कस कर देता हूँ. माविया, यस. PCM में क्या होता है कि डेवलपर को 3 चीजें अगर कंप्लीट हैं, ऑल अप्रूवल्स हैव बीन टेकन, 25% ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, उसका डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, एंड 25% ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन सोल्ड बाय वे ऑफ एंटरिंग इनटू द सेल एग्रीमेंट्स. और कम से कम सेल एग्रीमेंट्स पे वो सेल एग्रीमेंट्स कंसिडर होंगे जिन पर 10% पैसा आ गया है एज एडवांस, और वो 10% इन पे आ गया है, वो टोटल प्रोजेक्ट का 25% है. तो उस केस में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड लगेगा. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड का मतलब ये है कि आप जो प्रॉफिट है उसको स्टेज वाइज रिकॉग्नाइज करते जाएंगे. जितनी आपने कंस्ट्रक्शन जितने स्टेज तक कर दिया है, उतनी परसेंटेज में आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट पूरे प्रोजेक्ट का लेके प्रोपोर्शनेटली उतना प्रॉफिट उस साल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे ईयर वाइज. लेकिन अब IFRS में रिवर्स सिचुएशन हो गई है. उन्होंने कह दिया कि परसेंटेज वाइज नहीं चलना. अब इन द ईयर व्हेन कंप्लीट ट्रांसफर विल टेक प्लेस, ओनली देन कंप्लीट रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड. रेवेन्यू रिकॉग्नाइज है मतलब, क्योंकि अदरवाइज वर्क इन प्रोग्रेस में रहेगा. बात तो केवल प्रॉफिट की है कि जो प्रॉफिट है उसको ईयर वाइज रिकॉग्नाइज करना है या एट द एंड रिकॉग्नाइज करना है. तो अगेन आई मीन, बट एज ऑन टुडे, अंडर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू स्मॉलर फर्म्स एंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फॉर ऑल द फर्म्स, अब बड़ी फर्म्स को भी इनकम टैक्स के लिए PCM ही लगाना पड़ेगा. इनकम टैक्स एक्ट में चूंकि ICDS आ गया और ICDS ने PCM को ही रिकॉग्नाइज कर दिया है, तो वहां PCM से ही उनको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी.
तो बड़ी फर्म्स के लिए अब 2 अकाउंटिंग अलग अलग करनी पड़ेंगे उनको, या फिर आर्ग्यू करना पड़ेगा इनकम टैक्स में, भैया हम तो इसमें फॉल कर रहे हैं तो आईसीडीएस हमारे ऊपर लगना चाहिए। बट आई फील आईसीडीएस से पहले तो ठीक था कि वो आर्ग्यू कर लेते थे, लेकिन आईसीडीएस आने के बाद देयर इज हार्डली एनी स्कोप that we can overlook and we can supersede ICDS by IFRS. ICDS is the accounting standard which is applicable for the purpose of taxability under the Income Tax Act, and a smaller or bigger firm, whether following IFRS or Ind AS or Indian accounting standards, they will have to adopt PCM method only for the purpose of revenue recognition and offering tax for the purpose of taxation. तो डेवलपर्स के लिए ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है, particularly those who are following Ind AS and IFRS, bigger firms. So all I have tried to discuss within the time allotted all the issues. Is whatever the queries if are there, I will be delighted to answer. So one question that in case of 45(5)(a), where completion is not obtained, because in many areas, because of some deviation from the sanction plan and the actual constructed area, it becomes virtually difficult to procure completion certificate. So in those areas, how we can safeguard us from these non-availability of occupancy certificate in course of 45(5)(a)? देखो 45(5)(a) में if completion certificate is not obtained, then whether you get the right to transfer the Yes, sir. developed That is given. That is given. Sub-registrar never asks for the completion certificate. Like in Delhi, no sub-registrar will ask you for the copy of completion certificate. The moment it is completed, even for the incomplete superstructure also, the sale deeds are done by the sub-registrars. So then the year in which sale deed is being executed, that will be the year in which transfer will That take will be the year. So for there, if completion certificate is not there, so it is not that this section will तो create उसका any प्रोवाइजो problem. लग गया ना, 45(a) में जो प्रोवाइजो दिया हुआ है वो लग जाएगा कि भाई वो if transfer has taken place prior to issue of completion certificate, then it will be taxable in the, so 45(5)(a) का deeming provision लगने की बजाय the year in which sale deed is being executed, the capital gains will be offered to tax in that year. Right, sir. So we have few queries in the comment box. Mr. Suhas Kelkarji is asking, sir, one of the line of thought is JDA is nothing but joint venture between landowner and developer, and it will be separately assessed as AOP. What is your opinion? We discussed in the very beginning, because the characteristic राकेश जी ने भी शुरू में ये पूछा था, मैंने शुरू को थोड़ा सा एड्रेस भी करने की कोशिश की थी। अगर एओपी की कैरेक्टरिस्टिक और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यहाँ देखो एओपी में देयर इज कॉमन इंटरेस्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, हियर देयर इज नो कॉमन इंटरेस्ट, देयर इज कॉमन वेंचर but interests are different. Landowner is interested only in land and developer is interested only in the development of the land. तो लैंड को जो टैक्सेबिलिटी हो रही है वो ट्रांसफर ऑफ लैंड के ऊपर हो रही है। अगर उसको सेल कंसिडरेशन में इन काइंड मिल भी रहा है तो दैट इज ओनली ए वे ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ सेल कंसिडरेशन। तो जो रिस्क एंड रिवार्ड है उसमें जो बिजनेस की अनसर्टेनिटीज हैं, जो बिजनेस रनिंग की रिस्क हैं, वो कहीं जॉइंट नहीं है। All risks are taken independently by the developer. आप देखो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट्स में डेवलपर डेवलपमेंट की रिस्क सारी लेता है, लैंड ओनर के ऊपर वो रिस्क नहीं होती। अगर जेटीए इस तरह से बना हुआ है जहाँ बिजनेस की सारी रिस्क दोनों पे कॉमन आ जाती हैं, दोनों में कॉमन शेयर हो जाती हैं, then this can be a case where we can say that it is in the nature of joint venture or AOP. Otherwise बिजनेस की जो रिस्क हैं वो अगर कॉमन नहीं है then it cannot be AOP. Correct. So next we have from Rajendra ji. He's asking, what section will be applicable if consideration received without registration?
45 45(1) नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ एग्रीमेंट का तो आप 45(5) में फॉल नहीं करेंगे, तो आपको जो जनरल प्रोविजन 45(1) है उसके हिसाब से करना होगा। इफ इट इज ए कैपिटल असेट, और अगर बिजनेस असेट है तो फिर सेक्शन 37 के हिसाब से चलना होगा। Thank you, sir, for sharing such an in-depth knowledge with us. And that is all the questions we have. Now I request Advocate IP Bansalji to give closing remarks. We are thankful to Dr. Raj Aggarwal. The deliberation was very enlightening for all of us, and will be a landmark to discuss that each and every issue has been explained, which is found in the it is a new provisions of 5A, and for this purpose, the issue elaborated is a very good job, because you don't have the precedents to support all these views. So we have to see by the time, the flux of time, that what is the opinion courts are taking. But deliberation is very good, that we are enlightened to see every aspect of the, and this is applicable to HUF and individuals only. But analogy it has been explained by Dr. Aggarwal, that analogy can be taken instead of other problems also, because it is statutorily recognized now, statutorily, that at the signing of the agreement, nothing has happened as the filtering of income to the person, either developer or the owner. It is only when the project, the ADA project is completed, whether wholly or partly. And incidence of taxation, which was earlier a subject of litigation in many cases, I think that to some extent it will resolve in other cases also, unless amount is received, just told by Dr. Aggarwal sir, that amount is received and you have got the position, all these things, that the registry is made without even completion of certificate. That will certainly be a point of taxation at that moment. But apart from that, if you are fulfilling the conditions laid down in subsection 5A of section 45, then you have to go by the statute only. And no other situation can brought you under taxation. If you are going strictly by 45 5A, then the situation will be controlled by that subsection only. And proviso, as has been already told, that provisos take care of the situation, that if you are earlier than the completion certificate, you will be burned by section 45. Otherwise, so it is a very beautiful and knowledgeable deliberation, and we are very much thankful to Dr. Raj Aggarwal and Rakesh Kumar, Advocate ji also, and Raj Aggarwal ji and Sunil Aggarwal ji, that they have organized this incident. And I think that it will benefit so large person who are seeking advice or something like that. They can take care of, they can take from this deliberation and plan according to their deliberation. Thank you. So nice. Thank you, IP Bansalji, for being a session chairman. And I would also like to thank Rakesh Kumarji for being a guest of honor of today's webinar. Thank you all the viewers for attending this webinar. Thank you. Okay, thank you.